آتے ہیں مطلب بولنے میں، اگر علم سیکھے ہیں آتا بھی ہے تو بولنے میں ہیزیٹیشن ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو، جی تو بول سکیں ایسا مطلب سکھایا جائے کہ تقریر بالکل. کر سکیں. اور تو ایک دوسری ہمارا ٹیچرز ٹریننگ پروگرام بھی آنے والا ہے جو جی اسٹرانگ فاؤنڈیشن کورس کے اسٹوڈنٹس ہیں. یہ صرف جو لوگ اسٹوڈنٹس فنش کریں گے انہی کے لیے ہوگا. دعوت ٹریننگ کورس سب کے لیے اوپن ہے، لیکن ٹیچرز ٹریننگ پروگرام صرف کوالیفائڈ جو اسٹوڈنٹس ہمارے یہ کورس کر کے پاس آؤٹ ہوں گے ان کے لیے ہم رکھنے والے ہیں. وہ بھی ایک کورس میں آپ جوائن ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن میں آپ کو انشاءاللہ. بتاتا ہوں، اپنے اندر ایک وہ چاہت جب ہونا، آپ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ راستے کھولنے والا ہے، اور اوتھینٹک نالج کے طور پہ کوشش کریں. اور جیسے قرآن میں آتا ہے وما انا من المتکلفین، کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، انہیں کہنے کہا گیا قرآن میں بات. تو یعنی کیا تکلف کا مطلب یہ کہ کچھ اور ہے اور کچھ اور بتانا. مطلب کیا کہ میں اسٹوڈنٹ آف نالج ہوں نا، میں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ آف نالج کے طور پہ پورٹری کروں گا، اپنے آپ کو اسکالر کے طور پہ نہیں پورٹری کروں گا. اور میں کنیکشن ہوں بٹوین اسکالرز اینڈ عوام اور اسکالرز کے بیچ میں کنیکشن بننے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ اگر ہیں جو آپ اسکالرز کا نالج پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈونٹ پٹ یور سیلف کہ میں بہت بڑی اسکالر ہوں. تو آپ کے لیے یعنی ہم جب آنےسٹی اور سنسیئرٹی کے ساتھ کریں نا، بہت راستے اوپن ہیں. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اتنا چاہیے کہ ہم خدمت کر لیں اللہ کے دین کی. یہ سنسیئرٹی کے ساتھ کریں، اللہ نے بہت راستے اوپن رکھے ہیں. چلیے اور نیکسٹ سسٹر. جی جی تھوڑا 15 منٹ ہے ہمارے پاس کلاس سے پہلے انشاءاللہ. سسٹر عائشہ، ان کے بعد میں سسٹر روبینہ، اس کے بعد میں روحی آرٹ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہاں پہ بردر ساحل خان کو جی آفٹر آپ سنیے آواز جب رکے گی تب پوچھیے. ہاں یس بولیے. یس سسٹر پوچھیے. سسٹر عائشہ جی پوچھیے. یس سسٹر. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، جیسا آپ نے لاسٹ لیکچر میں بتائے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 3 لاکھ سے زائد حدیثیں یاد تھی. تو اس کے بارے میں مطلب ہمارے سامنے یہ سوال ہوا تھا کہ جی ان کو اتنی حدیثیں یاد تھی، تو اتنی حدیثیں تو درج نہیں ہے، تو مطلب بدعت کے لیے اگر ہم روکتے ہیں تو جی ہمارے سامنے یہی سوال آتا ہے کہ اتنی حدیثیں، کئی حدیثیں ہیں جو درج نہیں کی گئی، ہاں تو ہو سکتا ہے کہ جو ہم کرتے ہیں وہ صحیح ہے اور حدیث نہیں ہے اس کی، تو اس کے لیے تم لوگ ایسا بولتے ہو. میں نے اس سوال کا جواب لاسٹ ویک دیا تھا. آپ اسٹوڈنٹس میں سے، چلو میرے پاس تو وقت کم ہے، نہیں تو میں اسٹوڈنٹس کو ہی بولتا آپ کے سوال کا جواب دینے. حقیقت میں سسٹر جو یہ 3 لاکھ حدیثیں جو گنی گئی ہے، محدثین کے نزدیک ایک حدیث اگر ایک الگ چین آف نریشن سے آتی ہے، ایک الگ سند میں کوئی راوی چینج ہو گیا، مطلب ایک ٹیچر ہیں جن کے پاس سے 10 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، وہ 10 اسٹوڈنٹ پڑھ کر ایک اسٹوڈنٹ نے 5 اسٹوڈنٹس کو پہنچایا، ہو گئے ٹوٹل 50. تو محدثین کے نزدیک جب یہ سند چینج ہوتی ہے تو وہ حدیث الگ گنتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے تو کام الگ ہے نا، وہ ان کے لیے تو الگ ہی وہ چین آف نریشن یاد کرنا ہے. ہم لوگ تو چین آف نریشن کے بغیر ڈائریکٹ حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی حدیث کہاں سے، وہ لوگ جو حدیث بیان کر رہے ہیں تو کہاں سے بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ بیان کر رہے ہیں ڈائریکٹلی کہاں سے، سند سے، اوکے، چین آف نریشن سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اسے الگ حدیث گنتے ہیں. تو مثال کے طور پر کئی حدیثیں ایسی بھی ہیں جو ایک حدیث 600 چین سے ملتی، 600، تو وہ گنتی میں کتنی گنی جائے گی، 600 گنی جائے گی. تو جو 3 لاکھ حدیثیں امام بخاری نے یاد کی تھی وہ سب الگ متن والی حدیثیں نہیں ہیں، اس کے اندر چین آف نریشنز کے حساب سے وہ 3 لاکھ کاؤنٹنگ میں جاتی ہے. اور حدیث کے فن کے اندر جو 1 لاکھ حدیث کو یاد کرتے ہیں انہیں حافظ کہتے ہیں. قرآن کے حافظ کون ہے، جو قرآن کو یاد کر لیں. حدیث میں حافظ کون ہے، جو 1 لاکھ حدیث کو یاد کر لیں انہیں حافظ کہتے ہیں. تو امام بخاری حافظ بھی تھے، انہیں 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی. تو اب یہاں یہ بات ہے کہ کوئی کہے اوکے سنیے، ابھی بہت انٹرسٹنگ بات ہے، کوئی شخص بدعت کرنا چاہتا ہے، وہ کہے کہ ضرور ایسی کوئی حدیث ہے جو ریکارڈ نہیں ہوئی ہوگی، اوکے، ریکارڈ نہیں ہوئی ہوگی. تو ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہوگی کے اوپر ہمارا دین نہیں ہے کے اوپر ہے. یہ دین کی حفاظت کرنے والا کون ہے، اللہ ہے. جب اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور رول ماڈل ایگزامپل بنایا، جب اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا ایکسپلینیشن دیتے ہیں تو اللہ ہی حفاظت کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی. اور اگر ایسا اوپن اپ کریں گے تو کل کوئی کہے کہ ضرور ماتم کرنے کی بھی دلیل رہی ہوگی، ضرور غلام احمد سرور فرام قادیان جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی بھی کوئی دلیل رہی ہوگی کے لیے اگر اوپن کریں گے نا ڈور، تو یہ فلڈ گیٹس ہے، فلڈ گیٹس، مطلب اتنا بڑا دروازہ ہے نا، اس کے اندر کوئی لمٹ ہی نہیں کیا کیا اندر آنے والا ہے. ہوگی نہیں ہے تو بتاؤ، ہم بھی کریں گے، ساتھ میں کریں گے، مل کے کریں گے.
नहीं है आप भी मत करो, मैं भी नहीं करूंगा, दीन मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, दीन में नई चीज नहीं आ सकती। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अगला सवाल रूही आर्ट और रुबीना बेगम दोनों में से जो भी पहले, हाँ यहाँ पे भी है। मैं रिटन सवालों को मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, आप लोग रिटन में ना भेजें क्योंकि ऑलरेडी हाथ इतने ऊपर है कि वक्त उसी में जाने वाला है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शेख, मुझे ये बात पूछनी है आपसे कि जैसे औरतें नमाज पढ़ती हैं और जेंट्स जी नमाज पढ़ते हैं, सेम नमाज औरतों की भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ कुछ जी लोग ऐसे हैं जिसे अगर हमने देखा है नमाज पढ़ते हुए तो वो अलग तरीके से नमाज पढ़ते हैं। तो हम ये पूछते हैं उनसे कि क्या नाम है, आपकी ये नमाज नहीं हुई क्योंकि ये नमाज का तरीका नहीं है सही, और जल्दी-जल्दी नमाज पढ़ना भी ठीक नहीं है। जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं रुक-रुक करके और सारी अच्छी चीज़ें करते हैं, तो वैसे ही आपको करना चाहिए। अगर हम उसे समझा रहे हैं तो वो कहते हैं हमें ही उल्टा कि नहीं, तुम्हारी नमाज़ होने वाली नहीं है क्योंकि तुम जेंट्स की तरह, आदमियों की तरह नमाज़ पढ़ती हो उठा-उठा जी करके, सजदा मैं आपका करती हो सवाल हाथ समझ गया। झुका करके। जी सिस्टर, आपका जो सवाल है मैं समझ गया। हमारे इस कोर्स के अंदर एक टॉपिक सलाह ट्रेनिंग भी है जिसके नाम नमाज के अरकान क्या है, पिलर्स। हकीकत क्या है ना, जी, अगर जी। पिलर्स में से कोई छूट रहा है ना तो नमाज नहीं होगी। फिर लेकिन कुछ जी, है जो नमाज के वाजिबात में से है, नमाज की सुन्नतों में जी। से है। और इसके अंदर आज का जो टॉपिक है ना उलमा की पैरवी में, अगर ये टॉपिक कोई अच्छी तरह से समझ जाए वो टॉपिक भी हल हो सकता है। तो एम्प्टी आर्ग्यूमेंट्स कई बार हो जाते हैं लोगों के साथ, लेकिन हमें चाहिए कि हम ज्यादा मीनिंगफुल आर्ग्यूमेंट तब पैदा होता है जब नॉलेज के साथ हम वो बात करें, हम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ। देखिए कई बार क्या होता है ना, कोई सिम्टम होता है, सिम्टम ये जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स है जिसे बुखार आ रहा है, बुखार का आप कोई पैरासिटामोल ले लो या कोई ऐसी चीज ले लो जिससे बुखार उतर जाएगा, लेकिन बुखार आया क्यों, उसकी वजह पे जाना बहुत जरूरी है। तो जो बात आप जो कह रहे हैं ना, जो सिस्टर ने आपसे कहा, वो बात के अंदर सोल्यूशन क्या है मालूम, ऐसे पैरासिटामोल नहीं है, मतलब क्या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं होगा, सिर्फ उसके अंदर कोर रीजन पे जाना होगा। ये सवाल है क्यों, वो इस वजह से होता है क्योंकि किसी की कोई अंडरस्टैंडिंग है, हाँ किसी की कोई अंडरस्टैंडिंग है इस वजह से। तो वो अंडरस्टैंडिंग सॉल्व करना जरूरी है। आज का टॉपिक जरूर उसमें आपको हेल्पफुल साबित हो सकता है। मैं मोहम्मद साहिल खान को मैं मौका दूंगा यहाँ पे, जो काफी देर से हाथ उठाए हुए हैं, मोहम्मद साहिल खान को जी, जो इंग्लिश ग्रुप में जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बोले हैं कि अगर दीन दुनिया दोनों में कामयाब होने के लिए जी दुनिया पर से और क्या करना चाहिए? दीन और दुनिया दोनों में कामयाब होने के लिए हमें दीन पे चलना चाहिए। दीन में और दुनिया में दोनों में कामयाब होने के लिए दीन पे चलना चाहिए, फैक्ट ये। और दीन ने हमें सिखाया है कि वला तंसा नसीबका मिन दुनिया, दुनिया का हिस्सा लेना मत भूलो। मतलब ये नहीं कहा गया है कि जाओ जंगल में जाओ, छोड़ के सब कुछ त्याग दो तो ही तुम अल्लाह के करीब आ सकते हैं, ऐसी सोच है कई लोगों की, लेकिन इस्लाम ने ये नहीं सिखाया। इस्लाम ने कहा कि दुनिया में जो यहाँ की जो जायज अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कोशिश करो हलाल तरीके से। आपका सवाल जो है ना, अगर आप सक्सेस की बात कर रहे हैं तो सक्सेस तभी मिलेगा जब हम अल्लाह के दीन पर चलेंगे, तो ही हमें दुनियावी तौर पे भी सक्सेस मिलेगा। जी जी, और या फत्ताह हो, इसका मतलब क्या होता है? या फत्ताह हो, या फत्ताह। अल फत्ताह अल्लाह के नामों में से नाम है, अल फत्ताह ओपनर ऑफ वेज, रास्ते खोलने वाला। तो या फत्ताह जब कहते हैं ना, इसका मतलब ये है कि अल्लाह का नाम है, नामों में से ऑथेंटिक नाम है ये, जो कभी कोई रास्ता नहीं दिखता है, लेकिन अल्लाह के पास बहुत रास्ते हैं निकालने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में से समंदर के सामने से बचा लिया और वही समंदर में फिरौन को डुबा लिया। तो अल्लाह के लिए रास्तों की लिमिट नहीं, अल्लाह को बताना नहीं पड़ेगा अल्लाह ऐसा रास्ता खोला मुझसे, हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा, अल्लाह जानता है कि क्या रास्ते हैं। तो फत्ताह है मतलब हम अल्लाह को कह रहे हैं या फत्ताह मेरे लिए रास्ता खोल दे, ये रेलेवेंट चीज है, मतलब अल्लाह के नामों से हम पुकार सकते हैं। जी लेकिन टॉपिक से कनेक्टेड सवाल पूछिए। जी याद रखिए, कोई भी जिक्र करना है अगर फिक्स करके, तो आप के पास दलील होनी चाहिए कि ये चीज फलां नमाज के बाद पढ़ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। ऐसे आप किसी भी नाम से अल्लाह ताला को या फत्ताह बोल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप नंबर फिक्स कर रहे हैं, टाइम फिक्स कर रहे हैं, प्लेस फिक्स कर रहे हैं, सातों याद है ना, वो फिक्स कर रहे हैं तो आपको दलील लानी पड़ेगी। वजह फिक्स कर रहे हैं, ये वजह से ये करेंगे, ये वजह कुरान हदीस से है कि नहीं। हाँ जी शुक्रिया जी। अस्सलाम
वालेकुम सलाम। यस सिस्टर रुबीना, उनके बाद में जाकिर हुसैन। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल विद्यार्थ के मुतालिक है, क्या यानी जब कोई इंतकाल हो जाता है उसके बाद मस्जिद में ऐलान करता है, क्या ये बिदअत में से है? किसी के इंतकाल के बाद मस्जिद में ऐलान करना, इस बारे में स्कॉलर्स में भले ही इख्तलाफ है, लेकिन जब नज्जाशी का इंतकाल हुआ था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया था और लोगों को जमा किया था, लोग जमा हुए थे, जनाजे की नमाज पढ़ी गई थी, तो उस चीज के तहत इजाजत भी दी गई है। लेकिन जो बात जैसे भेजा जाता है कि जैसे मिसाल के तौर पे न्यूज़पेपर्स में आता है कि वी सिंसियरली रिग्रेट वगैरह, वो उसके ताल्लुक से एतराज उठाए गए, वो गलत समझा गया है। लेकिन स्पेसिफिक सवाल है, आप उसूली बातें मुझसे पूछिए, उसूली मतलब जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उसको हम एक्सप्लोर करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। जी, सिस्टर रुबीना बेगम, सिस्टर रानी परवीन और अबूजर खान, ये तीन में से जो भी पहले हाथ उठाएं, पहले अनम्यूट कर लें। यस सिस्टर रानी परवीन बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरा क्वेश्चन बिदअत से रिलेटेड है। जी। क्या जैसे हमारे यहाँ सिरनी बनाया जाता है किसी फेस्टिवल पे, या कभी कुछ खास घर में अनाज ये सब उगाया गया तो पहले बनाने से पहले उसको सिरनी फातिहा करना था, क्या ये बिदअत में आएगा या फिर ये सही चीज है? किस मौके पे किया जाता है सिस्टर? किस मौके पे? जैसे ईद, बकरीद, मुहर्रम, और हमारे यहाँ जैसे कोई इंतकाल कर जाते हैं तो 40 दिनों तक उनके नाम पे फातिहा किया जाता है, और कुरान खानी, मिलाद शरीफ, ये सब घरों में किए जाते हैं। सवाल का आप जवाब बताएं कि जो इंतकाल लोगों का हो रहा है अभी होता है ना, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी हुआ इंतकाल? होता था, तभी भी इंतकाल होता था? जी होता था। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एग्जाम्पल है, रोल मॉडल है। उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने ऐसे कोई खास 40 दिन पर खाने की दावत, मतलब कोई 40 दिन पर, 3 दिन पर 40 नहीं किए? और ये बाज लोगों ने बाद में फिक्स किया है, नंबर ऑफ डेज फिक्स किया, वजह फिक्स की कि वो खाना खिलाओ, कभी भी खिलाओ, कोई वजह नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन खाना खिलाने में अगर हम वजह फिक्स करेंगे और टाइम फिक्स करेंगे, दिन फिक्स करेंगे और कोई वजह फिक्स करेंगे कि फला बड़े नेक इंसान का इंतकाल हुआ। देखिए, नेक लोगों को रिस्पेक्ट करना है, हमें उनसे सीखना है, उनके जैसे बनने की कोशिश करना है, लेकिन इबादत के सारे अमल सिर्फ अल्लाह के लिए, और इबादत होगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हमें नहीं सिखाया तो वो चीज दीन में हो ही नहीं सकती, क्योंकि दीन मुकम्मल है। नई चीज होगी फहुवा रद, रिजेक्टेड है। आप लोगों को मैं पॉइंट्स याद दिला रहा हूँ, 5 पॉइंट्स आप लोगों ने याद किया था लास्ट वीक में, वही सब इसका जवाब है। हाँ, तो खाना कभी भी, अगर मान लीजिए कि कोई शख्स खाना खिलाना चाहता है, या मान लो किसी मैयत की तरफ से सदका करना चाहता है, और मैं आपको बात बोलता हूँ, इसमें आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप इस टॉपिक पे किसी को बताएं ना, बहुत एतदाल और बैलेंस के साथ बताएं। मतलब हम अगर किसी के नेकी के जज्बे की कद्र भी करें कि वो किसी मैयत के लिए जिनका इंतकाल हो गया उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, ये अच्छा जज्बा है। हम उन्हें कहते हैं कि यही जज्बे के साथ क्यों ना ऐसा काम करें जो साबित है। साबित काम भी तो है ना, इंतकाल की बात करने वाले सब गैर साबित शुदा थोड़ी है, साबित काम भी तो है। उल्टा जज्बा जब वहां गैर साबित शुदा में खर्च हो जाता है ना, साबित के लिए टाइम, एनर्जी, जगह, दिल में जज्बा बचता ही नहीं है। मतलब आदमी गलत चीज करता है ना, तो सही के लिए टाइम ही नहीं बचता है। तो इसमें क्या हम कहते हैं? हम कहते हैं चलो वही जज्बे के साथ आप ऐसा करो, दुआ करो, नंबर 1। नंबर 2, आप मैयत की तरफ से सदका कर सकते हो, लेकिन दिन मत फिक्स करो। सदका कर सकते हो दिन फिक्स किए बगैर, कभी भी करो, साबित है। सही बुखारी की हदीस है, साद बिन उबादा रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी वालिदा के लिए किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाया। कर सकते हैं आप इंशाल्लाह। तो क्या चीजें साबित है? किसी मैयत का कर्जा बाकी है, कर्जा अदा कर दो, अच्छी चीज है, करो। मतलब मैयत के लिए फिक्र है तो क्यों ना हम ऐसे काम करें जो साबित शुदा है। ओके, सिस्टर रुबीना बेगम, आप अपना सवाल पूछ लीजिए, लेकिन आपको जल्दी अनम्यूट करना होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
سر میں نے آپ کے سارے کلاسز جوائن کیے ہیں، اس میں آپ نے جتنا بھی بتایا، جو بھی تعلیمات حاصل کی ہے، ایک سے دوسرے تک پہنچائے. جی، یہ شروعات میں اپنے شوہر سے ہی کرتی ہوں، الحمدللہ وہ بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پر میں نے یہاں جی غور کیا ہے، جو بات میں اپنے گھر والوں کو یا پھر کسی اپنے معاشرے میں بتاتی ہوں، ایز اے مطلب لڑکی ہونے کی بنیاد پہ وہ لوگ زیادہ متاثر نہیں ہو پاتے ہیں. اگر وہی بات کوئی جینٹس کہتے ہیں، جیسے مرد حضرات کہتے ہیں، تو اس پہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں. جبکہ میں نے ایک حدیث بھی سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بی بی عائشہ کے ذریعے صحابی لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے، جو بھی ہے. پر میں نے کہیں پر بھی غور کیا ہے، جتنی بھی کتابیں میں نے ریسرچ کی ہے، سارے مرد حضرات کی لکھی ہوئی کتابوں پہ سب لوگ اس پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. وہی کتاب اگر خواتین کی ہوتی ہے تو کوئی لینا بھی پسند نہیں کرتا ہے. ایسا کیوں ہے سر؟ کوئی قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ میں ایسا؟ میرا کیا ماننا ہے نا کہ اس کے اندر آپ کو یہ نیگیٹو تھاٹ سے بچنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آدمی یہ سوچے اگر کہ کوئی نہ کوئی ریزن مل جائے گا. مطلب جیسے اگر کوئی کہے کہ انڈیا کے لوگوں کا کوئی نہیں پڑھنا چاہتا ہے، ہم انڈیا کے لوگ ہیں نا، ہم لوگوں سے کوئی کچھ سیکھنا ہی نہیں چاہتا. اب یہ دماغ میں خیال آ جائے تو بولے ہاں، شروعات کرنے سے پہلے ہی ہم ہار جائیں گے. ہاں، انڈیا کے لوگوں کی کتاب کوئی پڑھنا نہیں چاہتا. اب میں نے آپ کو مثال دیا شیخ ضیاء الرحمن اعظمی کی، انڈین عالم غیر مسلمان تھے، اسلام قبول کر کے کیے. تو آپ ایسے نہ سوچیں، ایسے کوئی چیز نہیں ہے. اور آپ کی بات میں دلیل ہو، کیونکہ کیا ہو رہا ہے نا، آپ کی بات کسی نے نہیں سنا، نہیں سمجھا، یا کسی بھی بہن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا بھائی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو اس ٹائم پر ہمیں اپنا فوکس یہ لگانا چاہیے، ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ میں جو بتا رہا ہوں کیا میرے دلائل اتنے مضبوط ہیں، کیا میری بات اتنی اسٹرانگ ہے، کیا میرے بتانے کا انداز مناسب ہے، کیا میں سامنے والے کے لیول کے حساب سے بتا رہا ہوں، کیا میں برابر سے سمجھا پا رہا ہوں. ہدایت یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ہم اپنی ڈیوٹی برابر کر رہے ہیں. اپنا محاسبہ کریں، جائزہ کریں. اب یہاں بیچ میں ایک رانگ تھاٹ آ گیا. کیا تھاٹ آ گیا نا کہ تم انڈیا والے ہو نا، اس لیے نہیں سمجھ رہا. ابھی آدمی سوچنا بند کر دے گا. جیسے آپ کے ساتھ اگر آپ خیال آیا کہ میں فیمیل ہوں، لیڈی ہوں، اس لیے میری بات کوئی نہیں سنتا، ایسا نہیں. حقیقت میں ایسا نہیں. آپ دیکھیے کئی مثالیں ہیں جس کے اندر قرآن و حدیث میں جو ذکر ہے. آپ دیکھیے فرعون کی بیوی فرعون کو کنونس کر رہی ہیں. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کی جو جان بچی نا، تو جان بچانے میں فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام، ان کا معاملہ تھا. انہوں نے ایکچولی ذریعہ بنی کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے کل بیٹے جیسا ہوگا، مطلب سمجھا لی انہوں نے، ایک جان بچا لی، اور موسیٰ علیہ السلام کی جان تھی وہ. ہاں، تو ایسا کبھی مت سوچیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بہت ڈسٹرب تھے صلح حدیبیہ کے وقت پر، کیونکہ صحابہ کو ایسا لگا تھا کہ ارے ہم لوگ تو حق پر ہیں، ہم آئے ہیں یہاں پہ اتنی دور سے عمرہ کرنے کے لیے، اور یہ مکہ کے مشرک ہمیں بول رہے ہیں جاؤ واپس جاؤ واپس جاؤ اگلے سال آنا. ہاں، تو ان کو بہت برا لگ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہیں پہ اپنا احرام اتار دو، اپنے جانور کو ذبح کر لو، بال شیف کر لو، ختم کرو احرام، ختم کرو، نو عمرہ. بہت ڈس اپوائنٹنگ لگا. لیکن وہ ٹائم پر آپ کو پتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، کوئی ہل نہیں رہا تھا. تو وہ ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وائف، ہماری اماؤں میں سے کسی سے ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کریے، آپ جا کے کریے، اور آپ جا کے کر لیجیے، اپنے بال حلق کریے، ذبح کریے، اور صحابہ بھی پیچھے فالو ہو جائیں گے. اور ان کے اس مشورے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا. جب صحابہ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں، تو وہ تو اس طرح سے آگے بڑھنے لگے اس میں کہ جیسے لوگوں کو لگا کہ ارے اتنی سپیڈ میں جو شیو کرنے جا رہے ہیں کہیں کوئی ہرٹ نہ ہو جائے. مطلب اتنا تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم لوگ کہاں پیچھے رہ گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہا، ہم نہیں بڑھے آگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود آگے بڑھ گئے. اللہ اکبر. تو مطلب ہم دیکھتے ہیں ایک خاتون کے مشورے سے بات ہوئی. ایسی بہت مثالیں ہیں. تو ایسے نیگیٹو تھاٹ سے ہمیں بچنا چاہیے. چلیے ہمارا وقت 2 منٹ آگے بڑھ گیا. جی شکریہ سر، جزاک اللہ خیر. جی ہم ابھی شروع کر رہے ہیں ہماری آج کی کلاس. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں آپ سب
بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں. آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک, فارمولا لیول کا موضوع. جیسے میں نے کہا نا, فارمولا اگر صحیح ہو جائے تو آدمی بہت سارے پرابلمس خود سالو کر سکتا ہے. تو ہمارے لیے ایک فارمولا لیول کا ٹاپک آج ہے علماء کی پیروی میں ہمارا منہج. یہ ٹاپک ہم سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ایزی طریقے سے سمجھیں گے. اور اس ٹاپک پر اگر رانگ سوچ ایک انسان کی ہو جائے تو وہ دو ایکسٹریمز میں سے ایک کا شکار ہو جاتا ہے. یا تو کوئی ایک ایکسٹریم پہ جائے گا یا تو دوسرے ایکسٹریم پہ جائے گا. اور ہمیں چاہیے کہ صحیح بیلنس جو اعتدال ہے اسلام میں, وہ اعتدال کے ساتھ اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا ٹاپک, علم حاصل کرنا ہر مسلم کے لیے فرض ہے. ہاں, اب آپ کہیں گے علم کے اوپر تو ہمارا پورا ٹاپک آ چکا ہے, پھر یہاں میں پھر سے اس بات کو کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ فیکٹ کیا ہے نا کہ علم کے متعلق جو باتیں آئی ہیں ابھی میں ریویژن کے طور پہ ذکر کر رہا ہوں. کیوں؟ پر آپ کے سامنے کچھ ایک بہت اہم فہم انڈرسٹینڈنگ والی بات آنے والی ہے, اور یہ سب باتیں آپ کے لیے یاد رکھنا ضروری ہے. سٹارٹ کرتے ہیں. 3 چیزیں ہیں. یہ پورا ٹاپک جو ہے نا 3 کی سیریز چلے گی. ایک بات بولنے کے لیے 3 باتیں بولی جائیں گی, ایک بات بولنے کے لیے 3 سب پوائنٹس رہیں گے, تاکہ وہ ایک بات ہم اچھی طرح سے سمجھ جائیں. تو یہ 3 کی سیریز رہے گی آپ کے سمجھنے کے لیے, گراسپ کرنے کے لیے. اچھا ہے, ٹوٹل 9 پوائنٹس ہے اس کے اندر. پورے لیکچر میں 9 ایسے سیکشنز ہیں. سب سے فرسٹ, ایزی, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. آپ دیکھیں ساری وہ آیتیں جو فرض کے تعلق سے ہیں, ساری آیتیں, میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں, آپ اپنے دماغ میں فلیش بیک کر لو. آپ پڑھ چکے ہیں ربی زدنی علما, آپ پڑھ چکے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق, آپ پڑھ چکے ہیں ساری حدیثیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے راستے پر چلے گا سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہوگا. فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں جب وہ گھر سے نکلتا ہے. اللہ اس شخص کو بشاش بشاش رکھے, نضر اللہ عمران, اس شخص کو خوش و خرم رکھے. سب یاد کرو, سب یاد کرو. کیوں؟ علم حاصل کرنا فرض ہے کس کے لیے؟ علی کل مسلم. علی کل مسلم, ہر مسلمان کے لیے فرض ہے, خالی اماموں کے لیے فرض نہیں, سارے مسلمانوں کے لیے فرض ہے. دوسرا, ساری وہ آیتیں حدیثیں جس میں قرآن پر غور کرنے کہا گیا ہے, یہ ساری آیات حدیث وہ غور کریے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن, وہ لوگ قرآن پر غور و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تم کیوں غور نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں غور کر رہے ہیں؟ غور کرنے کے لیے سمجھنا پڑے گا, سمجھیں گے تو غور کریں گے. یہ سورہ محمد میں ہے, سورہ 47 آیت نمبر 24. تو کیا تمہارے دل پہ تالا لگ گیا ہے؟ تالا ہے تو نہیں غور کروں گے, لیکن تالا نہیں ہے تو ضرور غور کروں گے. مطلب غور کرو, غور کرنے کے لیے سمجھنا پڑے گا. اور اسی طرح تیسرے پارٹ ہے, تیسرا پوائنٹ ہے جہالت کی مذمت میں ساری جو دلائل آئے ہیں, فلا تکونن من الجاہلین, ہرگز جاہلوں میں سے مت بننا, اعوذ باللہ نکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. وہ ساری چیزیں یاد کریے. یاد کرنے کے بعد آئیے ہم سیکنڈ سیکشن پہ بڑھتے ہیں. ہاں, سیکنڈ سیکشن پہ بڑھنے سے پہلے ایک سوال آپ کے لیے, بہت اہم سوال ہے. پول میں آپ کے سامنے آج کا پہلا پول آ رہا ہے. سوال یہ ہے, علم حاصل کرنے میں کون سا طریقہ صحیح ہے؟ فرسٹ آپشن, خود ہی کتابوں میں سے ساری کی ساری چیزوں کا علم حاصل کرو, علم لے لینا, یہ فرسٹ آپشن ہے. سیکنڈ, علماء سیکھ رہے ہیں نا, وہی کافی ہے. سیکنڈ آپشن, علماء سیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہے, علماء سیکھ رہے ہیں نا, وہی کافی ہے. تھرڈ آپشن, ہم بھی علم حاصل کریں, علماء کی طرف بھی رجوع کریں. اور فورتھ آپشن آپ کو دیا گیا ہے, آئی ڈونٹ نو, کہ جو لوگوں کو کچھ نہ سمجھ میں آئے تو کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آئی ڈونٹ نو پہ دبا دیجیے. اوکے, یعنی سب لوگ ووٹ کریں, میں بول رہا ہوں. اوکے, تو زیادہ مشکل سوال نہیں ہے, جو آپ کو صحیح لگتا ہے کہ فرسٹ آپشن خود ہی کتابوں میں سے ساری چیزیں سیکھیں گے, کیا آپ یہ صحیح سمجھتے ہیں تو وہ کلک کریے, اور نہیں تو جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ کلک کریے. 3 2 1 اینڈ پولنگ. ریزلٹس آپ کے اسکرین پر ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 96 سے 97% لوگوں نے کہا کہ ہم بھی علم حاصل کریں, علماء کی طرف بھی رجوع کریں. ویری گڈ, ماشاء اللہ, ویری گڈ, بارک اللہ. یعنی ٹاپک میں ابھی شروع کیا ہوں, میں سیکنڈ سیکشن لیا نہیں ہوں, اور الحمدللہ 96 to 97% لوگوں نے صحیح جواب دے دیا. بہت ہی اچھی بات ہے. آئیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں, اور اللہ نے آپ کو اس میں صحیح فہم دیا. کیوں؟ کیونکہ میرا سیکنڈ سیکشن یہ ہے علماء کی اہمیت. خود تو علم حاصل کرنا ہے, لیکن علماء کی بھی اہمیت ہے. کیونکہ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں نا کہ ہم لوگ کر رہے ہیں نا حاصل, ابھی علماء کی کوئی ضرورت ہی نہیں, عالموں کی کوئی ضرورت نہیں. ہم لوگ سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے ہیں؟ ہم لوگ قرآن حدیث پڑھیں گے, خود دیکھ لیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. عالم کی کیا ضرورت ہے بھائی, خود دیکھ لیں گے, ایسا لوگ بولتے ہیں, لیکن یہ صحیح نہیں ہے.
کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس کی کئی وجہ ہے، میں آپ کو 3 وجہ دے رہا ہوں، زیادہ ریزنز نہیں، 3 ریزنز. پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو. یہ میتھڈ سکھایا گیا کہ اگر تم نہیں جانتے ہو نا، اسکالر سے پوچھو، عالموں سے پوچھو. یہ طریقہ بتایا گیا ہے، علماء کا مقام ہے کہ پوچھو، لیکن ورڈز نوٹ کریے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ایک سوال آگے آنے والا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علم والوں سے پوچھو. اہل الذکری، اہل الذکری، احد من اہل الذکری نہیں ہے، علم والوں میں سے کسی ایک سے ہی پوچھنا نہیں ہے، علم والوں سے پوچھو. ورڈز نوٹ کریے کیونکہ آپ کو آگے کچھ پوچھا جائے گا اس بارے میں. دوسری دلیل کہ انکمپلیٹ نالج از ڈینجرس، ادھورا علم خطرناک ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ججز کے بارے میں بتایا. 3 جو جج ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور کہا وَرَجُلٌ، 3 جج میں جو 2 جنت جائیں گے، 2 جہنم جائیں گے، 1 جنت جائے گا. وہ 2 جہنم جو جائیں گے اس میں سے ایک وہ جو ناانصافی سے فیصلہ کرے گا، جہنم جائے گا. اگر وہ اس کا طرز عمل تھا وہ جہنم میں جائے گا، اس کام کی وجہ سے، ناانصافی سے فیصلہ کرنے کی وجہ سے جہنم جائے گا. لیکن ایک تعجب والی بات اس میں دی ہوئی ہے، یہ غور کریے، بہت امپورٹنٹ بات ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے صحیح سند سے، وَرَجُلٌ قَضَىٰ لِلنَّاسِ عَلَىٰ الجَّهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ. جو لوگوں میں فیصلہ کرتا ہے علی الجہل، وداؤٹ نالج، فہو فی النار، وہ آگ میں. مطلب جو بغیر علم کے فیصلہ کرتا ہے نا، بغیر نالج کے فیصلہ کرتا ہے، فہو فی النار، وہ جہنم کے آگ میں. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہ جو بات یہاں دی گئی ہے نا کہ ادھورا علم کے ساتھ میں آدمی اگر فیصلہ کرے ڈینجرس ہوتا ہے. بغیر علم کے فیصلہ دے، علی الجہل، جہل کے ساتھ، اگنورنس کے ساتھ فیصلہ کرے، ججمنٹ دے رہا ہے لیکن اگنورنٹ ہے، فہو فی النار، وہ آگ میں ہے. یہاں پہ بات کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کیا بات ہے؟ ذرا غور کریں. یہاں پہ بات یہ ہے نا میرے برادرز اینڈ سسٹرز کہ اگر آپ کوئی آیت جانتے ہو، کوئی حدیث جانتے ہو، ڈونٹ گیو اے ججمنٹ، فیصلہ مت دو، فتویٰ مت ایشو کرو. کیوں؟ وہ ٹاپک پہ اور کون سی آیتیں ہیں، وہ ٹاپک پر اور کون سی حدیثیں ہیں، اور کون سی بات قرآن و حدیث میں ہے. تو یہ کیا ہے؟ اگر ہم ادھورے علم کے ساتھ فیصلہ دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سیریس ورڈز ہے، فہو فی النار. اب جیسے ہم لوگ یہ دنیاوی طور پہ جانتے ہیں، مثال کے طور پہ اب کوئی ٹرک ڈرائیور ہے، اب کیا وہ بول سکتا ہے میں ڈرائیونگ میں ٹرک ڈرائیو کر سکتا ہوں، پلین بھی ڈرائیو کر لوں، ہاں میں اڑا لوں گا؟ نہیں، ہم بولیں گے بھائی تمہاری ڈرائیونگ کی چیزیں چینج ہوتی ہے، تمہارا ٹرک ڈرائیور ہو، تم ٹرک ڈرائیور ہو. کوئی مثال کے طور پر کوئی کہے کہ آپریشن کرنا ہے، میں ہی کاٹ کے کر لوں گا، نہیں چلے گا. ہم لوگ کسی کو اجازت نہیں دینے والے کہ بھائی کوئی تمہارے پاس نالج بھی ہے تو تم کیا پڑھے ہو، ٹرینڈ ہو، ایکسپیرینسڈ ہو، نالجبل ہو، کوالیفائڈ ہو تو کرو آپریشن، نہیں تو نہیں چلے گا. تو یہاں یہ ورلڈلی میٹرز میں ہم یہ سمجھتے ہیں، تو ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایکسپرٹس کا مقام اسلام نے رکھا ہے، اینڈ دے ہیو نالج. ہم علماء کے مقام کو نیگیٹ کر ہی نہیں رہے ہیں. جب ہم علم کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو ہم علماء کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں کہ علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور تیسری بات اس تعلق سے، ایک بہت ہی سیریس حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورڈز یہاں یہ یوز کیے، بہت ہی سخت الفاظ ہے، لیس منا، وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے، من لم یجل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقًّا، اور ہمارے عالموں کا حق نہ پہچانے، ہمارے عالموں کا حق نہ پہچانے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں. مطلب عالموں کا جو سٹیٹس ہوتا ہے، وہ مقام جو ہوتی ہے، جو اہمیت ہوتی ہے، جو امپورٹنس ہوتی ہے، جو ان کے رائٹس ہوتے ہیں، اگر ہم علماء کا مقام نہیں پہچانتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیسا منا، وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے. تو یہ بہت سیریس ورڈز ہے اور ہمیں یہ بات کو دھیان میں رکھنا ہے. مطلب ابھی ہم 2 چیزیں سیکھ چکے ہیں. ایک چیز میں ہم نے دیکھا کہ علم حاصل کرنا ہے، فرض ہے، یہ بات پہ ٹیک لگا کے نہیں رہ سکتے. علماء ہے نا، جیسے بعض لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، بولتے ہیں ہم سیکھتے نہیں کیونکہ عالم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی العالم، علم حاصل کرنا صرف عالموں کے لیے فرض، ایسا نہیں کہا. علی کلی مسلم کہا، صرف سارے مسلمان، کلی سب کے سب مسلمز کے لیے. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہ 2 ایکسٹریمز ہیں، اس کے بیچ میں صحیح راستہ ہے. ابھی بہت آنے والے ہیں، ذرا غور سے سنیے. ہم سٹیپ بائی سٹیپ بڑھ رہے ہیں. 9 میں سے 2 سیکشنز ہمارے کمپلیٹ ہوئے. فرسٹ سیکشن میں ہم نے کیا دیکھا؟ علم کی اہمیت. ایک بار ریوائز کریں، کیوں؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جاؤ. وہ کیوں ضروری ہے معلوم ہے آپ کو؟ کیونکہ اگر آپ یہ بات کو یاد نہیں رکھے کہ ہر ایک انسان کے لیے فرض ہے علم حاصل کرنا، ہر ایک مسلم کے لیے فرض ہے، تو یہ ٹاپک آپ نہیں سمجھ پاؤں گے. اس لیے وہ ریوائز کرنا ضروری تھا. لیکن دوسرا ایکسٹریم کیا ہے کہ کوئی کہے علماء کی کوئی ضرورت ہی نہیں. ہم وہ بالکل نہیں کہہ رہے. علماء کا مقام ہے، اہمیت ہے، لیسا منا، وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. تھرڈ سیکشن. اور سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا
कि सही तरीका क्या है कि हम भी इल्म हासिल करें, उलमा की तरफ भी हम रुजू करें, हाँ हम भी रुजू करें। अब हम देखते हैं कि ये टॉपिक में फहम का सही फॉर्मूला, मतलब अभी मैं आपके साथ पूरा ये टॉपिक अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक मेन फॉर्मूला देना चाहता हूँ। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो हर एक टॉपिक की जान होती है ना, ये पूरे मौजू की ये जान है, जो बात अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये इसका मेन ग्रैस्प करने के लिए, मून समझने के लिए और समझाने के लिए। बाज लोग खुद समझे हुए होते हैं लेकिन समझा नहीं पाते, तो समझाने के लिए ये सबसे कोर पॉइंट है। हाँ, तो कोर पॉइंट बताने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा कि इल्म किस आलिम के पास से हमें हासिल करना चाहिए। ओके, ये पोल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये आप लोग अपने थॉट्स जो भी आप सही समझते हैं उसे एक्सप्रेस करें, इंशाल्लाह मैं फिर आपके साथ में जवाब शेयर करूंगा। फर्स्ट आंसर, किसी एक ही आलिम के पास से, मतलब एक ही होना चाहिए। सेकंड, 4 में से एक होना चाहिए। आपको 4 इमाम मालूम है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल, वो 4 में से एक होना चाहिए। तो 4 में से, चारों 4 से, ये सेकंड ऑप्शन है। फोर्थ है, थर्ड है 4 में से किसी एक से ही, और फोर्थ है ऑप्शन ये है किसी भी सही इल्म वाले आलिम से, मतलब जिसके पास सही इल्म, सही मनहज, सही फॉर्मूला है, फॉर्मूला सही तरीकेकार है, फॉर्मूला है, उसके पास प्रूफ है, मतलब तरीके का भी सही हो, प्रूफ भी हो, जैसे सही इल्म और सही मनहज वाले आलिम से हमें सीखना चाहिए। ये है फोर्थ ऑप्शन। तो आप लोग क्या समझते हैं, मतलब हम उसके अंदर 4 इमामों को भी शामिल रखते हैं। ओके, क्या है सही जवाब? व्हाट डू यू थिंक? आप एक्सप्रेस करिए। 3 सेकेंड और 3, लंबे सेकंड्स होते हैं ना मेरे, 2, 1। फिर भी पता नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ लोग लास्ट सेकंड तक या आधे सेकंड तक वोट करते रहते हैं। एंड पोलिंग रिजल्ट्स आपके स्क्रीन पर हैं, और 87, दोनों जगह पे 87 है। 87% लोगों ने वोट किया कि क्या वोट किया, किसी भी सही इल्म वाले आलिम से हम इल्म हासिल करें, किसी भी सही इल्म वाले आलिम से। और क्या है सही जवाब, चलो देखते हैं। मैं आप सबके सामने फॉर्मूला शेयर करना चाहता हूँ, फॉर्मूला इस टॉपिक का। ये एक आयत है और इसमें सही बात है किसी भी सही इल्म वाले आलिम से हम इल्म हासिल करें। देखिए, हमें कुरान और हदीस सुन्नत की तरफ रिफर करना है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम पैदाइश 80 हिजरी, इंतकाल 150 हिजरी। इमाम मालिक पैदाइश 93 हिजरी, इंतकाल 179 हिजरी। इमाम शाफई 150 हिजरी में पैदा हो रहे हैं, जिस साल में इमाम अबू हनीफा का इंतकाल हुआ उस साल में इमाम शाफी पैदा हुए। इमाम 204 हिजरी में इंतकाल हुआ। इमाम अहमद बिन हंबल 164 हिजरी में पैदा हुए, 241 हिजरी में इंतकाल हुआ। लेकिन सबके सब हमें कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे थे? कुरान और सुन्नत तक, कुरान और सुन्नत तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने ये नहीं कहा मेरे मानने वाले बनो, मेरी बात मत छोड़ना, तुम मेरे फॉलोअर हो, कोई अलग मजहब, कोई अलग रास्ता लेकर नहीं आए। सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें कनेक्ट करने की कोशिश की। और बल्कि सिर्फ 4 उलमा नहीं है, अगर आप देखोगे कई सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स गुजर चुके, कई सारे। अब यहाँ पर आपके सामने बात ये है, आगे आगे ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं। अब आपके सामने बात ये है कि मैं जो फॉर्मूला आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि कभी ऐसा होता है कि इन आलिमों में आपस में इख्तिलाफ हो जाता है, स्कॉलर्स में आपस में इख्तिलाफ हो जाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए? ये पोल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आलिमों के इख्तिलाफ में हमें क्या करना चाहिए? आप सब क्या सही समझ रहे हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं आपके साथ फिर आंसर शेयर करूंगा। एक बहुत ही कीमती आंसर है। जब उलमा में इख्तिलाफ हो, फर्स्ट ऑप्शन जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। इख्तिलाफ है ना, अच्छा क्या लग रहा है वो करो। सेकेंड ऑप्शन, ज्यादा लोग किसे फॉलो करते हैं, किस आलिम को फॉलो करते हैं, किसकी ज्यादा फॉलोइंग है, उसके पीछे चलो। ज्यादा इल्म किसे फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम लोग डेमोक्रेसी में ना, यहाँ ज्यादा वोट जिस पार्टी को मिलते हैं वो पावर में आ जाती है। थर्ड ऑप्शन, हमारे बाप दादा किस आलिम के पीछे चल रहे थे उनको ही मानो। फोर्थ ऑप्शन, किसी आलिम के पास प्रूफ है उस आलिम की बात माननी चाहिए। हाँ, जिसके पास प्रूफ हो उनकी बात मानो। और फिफ्थ ऑप्शन, जब आलिमों में इख्तिलाफ है ना तो सबके सब आलिम को छोड़ दो, कोई भी नहीं चाहिए। ऐसा फिफ्थ ऑप्शन, उस टाइम पे हम ही आलिम खुद, मतलब इख्तिलाफ हो गया ना, सबको छोड़ दिया। क्या है सही बात? आपको क्या सही लगता है वो बताइए। 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1। हमारे जो भाई और बहन वोटिंग में पीछे रहते हैं उनको मैं एनकरेज करता हूं, आप भी आगे बढ़े, हाँ एक्सप्रेस करें। सही गलत चलता है, कोशिश तो कर रहे हैं आप कम से कम,
हाँ कोई बात नहीं, एंड पोलिंग। रिजल्ट्स आपके स्क्रीन पर, और 96 से 98% लोगों ने जवाब दिया कि जिस आलिम के पास प्रूफ है हम उस आलिम की बात को मानेंगे। ओके, आप ये कह रहे हैं, चलिए हम देखते हैं कुरान और हदीस में क्या बताया गया। कुरान और हदीस में इस ताल्लुक से हमें एक आयत मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये आयत इस टॉपिक पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। ओके, इंशाल्लाह आप सबको ये आयत याद करनी है। अभी सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, 4 + 5 = 9, 4 और 5 मिलाएंगे तो हो जाएंगे 9। पढ़ते हैं, ये याद करने का फॉर्मूला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, अतीउल्लाह, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, व अतीउ रसूल, रसूल की फरमाबरदारी करो, वो उलिल अम्री मिनकुम, तुम में जो इख्तियार वाले हैं उनकी बात भी मानो। अल्लाह की फरमाबरदारी करो, रसूल की फरमाबरदारी करो, और उलुल अम्र जो है, जो उलुल अम्र कौन है? इमाम इब्न कसीर कहते हैं अन इब्न अब्बास से, व उलिल अम्री मिनकुम यानी अहलुल फ़िक़्ह व दीन, ये फिक़्ह और समझ वाले लोग, दीन वाले। वो कदा काला मुजाहिद व अता, ऐसे ही मुजाहिद जो ताबई है, अता है, उन्होंने भी यही कहा। वो हसन बसरी ने कहा, वो अबुल आलिया ने यही कहा। क्या कहा? ये उलमा है, स्कॉलर्स है। हाँ, जो उलुल अम्र कौन है? स्कॉलर्स है। वो उलुल अम्री मिनकुम यानी उलमा, सबने कहा। और इस बात के बारे में हम देखते हैं कि इमाम इब्न कसीर कहते हैं कि वज़्ज़ाहिरु वल्लाहु आलम, जो जाहिर है अल्लाह बेहतर जानता है, अन्नहा आम्मतुन फी कुल्ली उलिल अम्र, कि ये सारे उलुल अम्र के लिए है, मिनल उमरा वल उलमा कमा तक़द्दमा, चाहे वो उमरा है, रूलर्स होते हैं, खलीफा होते हैं मुसलमानों के। उलुल अम्र दोज़ इन अथॉरिटी, अम्र यानी अथॉरिटी। जो अथॉरिटी में कौन मुराद है? अथॉरिटी तो यानी उलमा है, और वो क्या कह रहे हैं? खुलफा है, मतलब उमरा है, यानी रूलर्स है, जो खलीफा की भी बात मानो। हाँ, कमा तक़द्दमा, जैसे कि पहले आ चुका है। मतलब क्या? अल्लाह की फरमाबरदारी करो, रसूल की फरमाबरदारी करो, और उलुल अम्र की करो। अब यहाँ पे बात समझने की क्या है, वो बात, एक बहुत अहम बात जो आगे आ रही है। आगे क्या है कि अल्लाह ताला ने आगे इस आयत में फरमाया, आयत वहां खत्म नहीं होती, बाज लोग आयत को वहीं तक पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर आपस में तनाज़ा आ जाए, इख्तिलाफ आ जाए, वही हमारा सवाल था ना। देखो गौर करो, इख्तिलाफ मत करो, कुरान हदीस में कई बात दिया हुआ है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि, अल्लाह की रस्सी को थामे रहो, ला तख्तलिफू, आपस में इख्तिलाफ मत करो, सही बुखारी की हदीस। फ़इन्ना मन काना क़ब्लकुम इख्तलफू फ़हलकू, तुमसे पहले वाले इख्तिलाफ में पड़ गए, हलाक हो गए, सही बुखारी में दिया हुआ है। तो इख्तिलाफ मत करो, ये दिया हुआ है। इख्तिलाफ आ जाए तो क्या करो? इख्तिलाफ हो गया तो क्या करो? मतलब इख्तिलाफ नहीं होने दो, अच्छी बात है, नहीं होने दो, हो गया तो क्या करें? मिसाल दे रहा हूं, आग लगने मत देना, वेरी गुड, कॉशन लो, एहतियात लो। आग लग गई तो क्या करें? इख्तिलाफ मत होने दो, हो गया तो क्या करें? यहां पे ये दिया हुआ है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर इख्तिलाफ आ गया किसी भी मामले में तो क्या करें? सवाल देखिए, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल कुरान में कई जगहों पर है, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल के साथ व उलिल अम्री मिनकुम, ये एक ही जगह पर है, यहां पर सिर्फ ओनली वन प्लेस। जब तक बात अतीउल्लाह व अतीउ रसूल की है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर, मैं अगर यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट हाथ उठाइए, ये सिस्टर आपने जो हाथ उठाया है, सिस्टर अनीस फातिमा, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, और यहाँ पे जाकिर हुसैन से पूछ रहा हूँ, दोनों जवाब दो। हाँ, एक इंग्लिश ग्रुप में से, एक उर्दू ग्रुप में से। यस सिस्टर, आपके रसूल कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु। जाकिर हुसैन, आपके रसूल कौन है? यस, 2-3 लोगों को, सिस्टर 2-3, बस दो लोगों को दिया। यस, साहिल खान, आपके रसूल कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुने आपने? कोई इख्तिलाफ है? नहीं है, नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। मैं 25 स्टूडेंट को भी पूछूंगा, सब लोग यही जवाब देंगे। लेकिन अगर मैं पूछना शुरू करूं, जाकिर हुसैन आप बताइए, आप कौन से आलिम की तरफ रिफर करते हैं? नाम बोलिए जरा, है वो अनम्यूट है? नहीं। साहिल खान, आप कौन से स्कॉलर को रेफर करते हैं, जरा नाम बताइए। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप कैसे रेफर कर रहे हैं? कोई स्कॉलर है, कोई आलिम
जिनको आप पूछते हैं सवाल, कोई पूछना है, कोई आलिम है? हाँ, जी मेरे तो मस्जिद में एक इमाम है, उनसे उनके मस्जिद में इमाम है, उनको पूछते हैं। और अगर मैं सिस्टर अनीस फातिमा से पूछूंगा कि आप कौन से आलिम को पूछते हैं, कोई सवाल पूछना है तो? जी हमारे जो भी लोकल होते हैं उन्हें। हाँ, ओके, सुन रहे हैं आप? बात सुनिए, जब बात आती है उलुल अम्र पे ना, बहुत इख्तिलाफ है। ये भाई बोलेंगे मैं हमारे मस्जिद के आलिम को पूछूंगा, वो कहेंगे मैं हमारे एरिया के आलिम को पूछेंगे। यहाँ पे इख्तिलाफ आता है। जब तक बात अतीउल्लाह व अती रसूल पे है तो कोई इख्तिलाफ नहीं। जब आ जाती बात उलुल अम्र पे ना, तो इख्तिलाफ यही आता है। स्कॉलर्स पे रेफर करना है ना, वहां पे इख्तिलाफ आता है। इसी वजह से यहीं पे अल्लाह ने बताया है, जब अल्लाह ताला ने यहाँ अतीउल्लाह व अती रसूल के साथ फर्स्ट एंड ओनली प्लेस इन द कुरान, एक वाहिद अकेली जगह कुरान में जहां उलुल अम्र का जिक्र है, तो इसी जगह पर अल्लाह ताला ने उसके फौरन बाद कहा अगर आपस में इख्तिलाफ आ जाए क्या करना। ये नहीं कहा मेजॉरिटी क्या कर रहे हैं वो करना, ये नहीं कहा जो करना है करो, ये नहीं कहा कि ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं चेक कर लेना वो करना। अल्लाह ताला ने क्या कहा, हम लोग पढ़ते हैं सवाल का जवाब, जो सवाल आया था उसका जवाब। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर किसी भी मामले में इख्तिलाफ आया फरुद्दुहु इलल्लाहि व रसूल, उसे अल्लाह की तरफ रिफर करना, उसे रुजू करना अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ यानी अल्लाह की किताब कुरान। इमाम इब्न कसीर कहते हैं अल्लाह की तरफ यानी कि खुदा कुरान, और वो रसूल की तरफ रुजू करना यानी कि हदीस। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह, अगर अल्लाह पे ईमान है तो, अल्लाह पे ईमान है तो क्या करोगे, अल्लाह की तरफ रिफर करो और रसूल की तरफ रिफर करो। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह वल यौमिल आखिर, क़यामत के दिन में ईमान है तो, ईमान नहीं है तो जो करना है करो, ईमान नहीं है तो जो करना है करो। ईमान है तो क्या करोगे, अल्लाह की तरफ रिफर करोगे, रसूल की तरफ रिफर करोगे। इख्तिलाफ आने के बाद क्या करोगे, कुरान और हदीस की तरफ रिफर करोगे। अगर अल्लाह पे ईमान है तो, क़यामत के दिन पे ईमान है तो, ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, इसमें खैर है, इसका बेहतरीन अंजाम है। मतलब लोग आज क्या बोलते हैं ना, जब ये बात दावत रखी जाती है कि भाई मुसलमानों में इख्तिलाफ है, चलो बैठकर बात करेंगे, आपके पास क्या दलील है आप बताओ, मेरे पास ये दलील है, चलो देखेंगे जो सही मिलेगा करेंगे। जब ये कोशिश आज बढ़ रही है ना उम्मत में कि लोगों से कहा जा रहा है चलो कुरान हदीस के अंदर जाके देखेंगे, जो मिलेगा वहां करेंगे, जिस आलिम के पास प्रूफ है उनकी बात ले लेंगे, तो क्या कहा जा रहा है, फितना हो रहा है, ये फितना। तो अल्लाह ताला ने सवाल का जवाब पहले से कुरान में दिया है, ज़ालिका खैरुन, ये देख रहे हैं आप खैर, हाँ, ज़ालिका खैरुन, इसमें खैर है, वअहसनु तावीला, इसका बेहतरीन अंजाम है। मतलब लोग कहते हैं फितना है, फितना नहीं, इसमें खैर है और इसका क्या है मामला, बेहतरीन अंजाम है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सबको इस चीज में उभार रहा हूँ कि ये खैर जो है ना वो हमें दुनिया में फैलाना है आज। अच्छा एक बात गौर करें, अतीउल्लाह व अती रसूल व उलिल अम्री मिनकुम, इमाम इब्न हजर अल अस्कलानी जिन्होंने सही बुखारी की कमेंट्री लिखी है, वो कहते हैं यहाँ पे गौर करो, अतीउल्लाह व अती रसूल के बाद वो अती उलिल अम्री मिनकुम नहीं है, व उलिल अम्री मिनकुम है। मतलब अती वर्ड थोड़ा कम किया गया। और गौर करने की बात क्या है, इख्तिलाफ आने के बाद ये नहीं कहा गया फरुद्दुहु इलल्लाहि व रसूल व उलिल अम्री मिनकुम, वहां पे वो उलिल अम्र ड्रॉप्ड है। पता है चला कि अल्लाह की फरमाबरदारी खुद दलील है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी खुद, हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी खुद हम पर लाजिम है, लेकिन उलुल अम्र की फरमाबरदारी तब होगी लाजिम जब कुरान हदीस का प्रूफ होगा। यानी मिसाल के तौर पे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं कहेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रूफ क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद प्रूफ है, लेकिन उलुल अम्र तब प्रूफ बनेंगे जब उनके पास प्रूफ कुरान से होगा या हदीस से होगा। इसी वजह से अल्लाह ने कहा जब आपस में इख्तिलाफ आ जाए तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ रिफर करो। मतलब फाइनल प्रूफ जो है वो कुरान हदीस है। उलमा कुरान हदीस के प्रूफ हम तक पहुंचाते हैं और वो पहुंचाते हैं, उनकी बात भी मानो मेरे भाई। मतलब हमारे जो 3 दलाइल उलमा के मकाम के ताल्लुक से आए उसके अंदर ये बात भी ऐड हो सकता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला हम समझ रहे हैं। फॉर्मूला क्या है कि उलमा की तरफ रिफर करना है और हमें इस बात को आपस में इख्तिलाफ आ जाए तो उलमा में आपस में इख्तिलाफ आ जाए तो क्या करेंगे, रुद्दुहु इलल्लाहि व रसूल, उसे अल्लाह की तरफ लौटाएंगे, रसूल की तरफ लौटाएंगे, ईमान वाले हम हैं और इसी में खैर है, इसमें खैर है। क्यों? क्योंकि जाके देख लेंगे कुरान महफूज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें महफूज है, हदीसें जो बयान कर रहे थे रावी, मोर देन 6,40,000 रावियों की हदीस की जिंदगियां चेन ऑफ नरेशन के साथ महफूज है। लास्ट आज तक कोई मुहद्दिस जाकर चेक कर सकता है कि हदीस सही है ज़ईफ है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हाँ, तो हम ये देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका सही जवाब क्या है, जिस आलिम के पास प्रूफ है उनकी बात मानेंगे, बाप दादा प्रूफ नहीं है, ज्यादा लोग प्रूफ नहीं है, जो अच्छा लगे प्रूफ नहीं है, और छोड़ देना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, ये सब बात हम समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ ना,
एक्सट्रीम सुनिए। फर्स्ट एक्सट्रीम ये है कि बाज लोग जिद के साथ इमाम की पैरवी जिद के साथ करते हैं, हठधर्मी। मतलब क्या, कोई आलिम के पीछे पैरवी करते हैं जिद के साथ, हठधर्मी के साथ। मतलब क्या, आलिम को रिफर करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपस में इख्तिलाफ आ गया, किस आलिम के पास प्रूफ है हम ले लेंगे, जिस आलिम के पास कुरान हदीस के से प्रूफ है हम ले लेंगे उनकी बात को। यही हमें सिखाया गया। मतलब बाज लोग क्या करते हैं कि एक हठधर्मी के साथ, नहीं नहीं हम तो इनके मानने वाले हैं, हम तो हनफी हैं, हम इमाम अबू हनीफा की बात छोड़ने वाले ही नहीं, हम उनकी बात छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह ताला ने क्या कहा, आपस में तनाजा आ जाए क्या करो, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह की तरफ लौटाओ, रसूल की तरफ लौटाओ। और यहाँ पर जो आया उलमा की तरफ रेफर करने कहा गया, तो अहदु मिन अहले ज़िक्र नहीं कहा गया है, सब उलमा हमारे, हम उलमा को छोड़ने नहीं कह रहे हैं, लेकिन उलमा की पैरवी के अंदर कोई अगर जिद और हठधर्मी पे उतर आए कि नहीं हम तो शाफी, हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हम तो फला, जैसे मैं तो अपने मस्जिद के इमाम को नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पे अगर हम ये कहें तो ये तो गलत है ना, ये गलत है। अब ये एक एक्सट्रीम है। फिर दूसरी तरफ दूसरे लोग आए, वो कहते हैं कोई आलिम की जरूरत ही नहीं है, ये भी गलत है। दो एक्सट्रीम्स, एक तरफ वो लोग जो किसी आलिम को पकड़ लिए तो छोड़ना नहीं चाहते, हम अपने आलिम की बात कभी नहीं छोड़ेंगे, हाँ, और दूसरी तरफ वो लोग जो कहते हैं कि आलिम की जरूरत ही नहीं है। और सही रास्ता क्या है, दरमियान में। और सही रास्ता ये है, सारे उलमा की रिस्पेक्ट करेंगे, सारे आलिमों को रिस्पेक्ट करेंगे, जिसके पास भी कुरान और हदीस से प्रूफ है उनकी बात ले लेंगे। हम पैरवी किसकी करते हैं, हम पैरवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं। गाड़ी आपको पता है ना, याद है ड्राइविंग, कि हमें रास्ता नहीं मालूम है, अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ता बताया, हमें कहा उनकी इत्तिबा करो, उनकी पैरवी करो, हम उनके पीछे पीछे चले। और उलमा हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की पैरवी करने में हेल्प करने के लिए, वो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की पैरवी से जोड़ने के लिए। किसी आलिम ने नहीं कहा मेरे मानने वाले बनो, मेरी बात तुम हरगिज मत छोड़ना, किसी ने ऐसा नहीं कहा। जो कुरान और सुन्नत के उलमा हैं उनमें से किसी ने ये बात नहीं सिखाई। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं, ये दो एक्सट्रीम्स के बीच में सही रास्ता है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको मैं उभारता हूँ, ये दोनों एक्सट्रीम में से किसी पे मत जाना। ऐसे भी मत बनना कि नहीं मैं अपने आलिम की बात नहीं छोड़ूंगा, कुरान हदीस का प्रूफ सामने आ गया तो भी लोग नहीं छोड़ते हैं, बोले हम तो इनके मानने वाले ही हैं। अरे आप तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, आप पैरवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हो। ऐसी जिद और हठधर्मी स्टबर्ननेस के साथ बिल्कुल नहीं करना। हाँ, स्कॉलर्स की तरफ रेफर करो, लेकिन सब उलमा हमारे हैं, आपस में बांटो मत उन्हें कि ये मैं ये आलिम का मानने वाला हूँ, वो आलिम का मानने वाला हूँ, सब हमारे हैं। दूसरी तरफ दूसरे एक्सट्रीम ये है कि ये भी एक्सट्रीम पे मत आना, कोई आलिम की जरूरत ही नहीं है, उलमा की जरूरत है। अल्लाह ताला ने कहा वो उलिल अम्री मिनकुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिन्ना, वो हमारे मानने वालों में से नहीं है। ये दो एक्सट्रीम से हमें बचना है। अब मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल हदीस बताऊंगा इस मौजू पर। सही बुखारी में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा हकमल हाकिम, जब कोई जज फैसला करता है नॉलेज के साथ, कंप्लीट नॉलेज के साथ, पूरी कोशिश के साथ, फजतहद, इज्तिहाद करता है, पूरी कोशिश करता है, सही तरीके कार से फुल कोशिश की, सुम्मा अख्ता, हाँ सुम्मा असाबा, सही हो गया, फिर सही जवाब आया, फलहु अजरान, उसे डबल अजर मिलेगा, उसे डबल रिवॉर्ड मिलेगा। वइदा हकमा, और वो जब फैसला करे, फजतहदा, इज्तिहाद करे, सुम्मा अख्ता, फिर मिस्टेक हो जाए, फलहु अजर, तो भी उसे एक अजर मिलेगा। मतलब कोई जब आलिम जब पूरी कोशिश करते हैं, स्कॉलर्स उन्होंने एफर्ट लगाया, पूरी कोशिश करके सही है तो दुगना अजर मिलेगा, गलत है तो एक अजर मिलेगा। क्यों मिलेगा, आप में से कौन बता सकते हैं क्यों मिलेगा एक अजर गलत होने पे? कौन बताएगा इसका जवाब? यस, मैं चाहता हूं नए लोगों को मौका मिले। मोहम्मद सरफराज, ये साहब बताइए, और सिस्टर आयशा कुरैशी आप बताइए। मोहम्मद हुसैन को भाई उनको इसलिए कि उन्होंने इज्तिहाद किया, पूरी कोशिश करी, और कुरान और हदीस को सामने दलाइल रखते हुए उन्होंने फैसला करने की कोशिश करी, इस वजह से उन्हें एक अजर मिलेगा। बिल्कुल सही जवाब। क्यों रिवॉर्ड मिलेगा? जी जज़ाकल्लाह खैर, आपने सही जवाब दिया। क्यों रिवॉर्ड मिलेगा? कोशिश की ना उन्होंने, कोशिश की है ना, कोशिश की तो उनको क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। अब यहाँ बहुत ब्यूटीफुल बात सुनिए, दो स्कॉलर्स दो बात बोल रहे हैं। आप एक स्कॉलर के मानने वाले हो, किसी भी वजह से आप किसी एक स्कॉलर की तरफ ज्यादा रेफर कर रहे हो, अब आपको पता चला कि इस मसले में फला आलिम के पास ज्यादा प्रूफ है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, आपको क्या करना है?
रुद्दुहु इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटाना है, यानी कुरान और हदीस की तरफ लौटाना है। जिसके पास सही बात है, सच्ची बात है, उनकी बात ले लेना है। पैरवी किसकी करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं। सारे इमामों ने किसकी पैरवी करने सिखाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने सिखाया। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको वो करना है। अब ये बात याद रखो कि जो आलिम की बात आप छोड़ भी रहे हो ना, हम उनके बारे में अच्छा गुमान कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उनकी उस कोशिश की वजह से उन्हें एक अजर मिलेगा, उनको एक अजर मिलेगा। किस वजह से मिलेगा? उन्होंने एफर्ट लगाया ना, कोशिश की, वो कोशिश की वजह से उन्हें वो एक अजर मिलेगा। किसी का सवाल है, उलुल अम्र का मतलब क्या? उलुल अम्र उलमा और उमरा, उलमा स्कॉलर्स, उमरा खलीफा, जो खलीफा की बात भी मानो। लेकिन एक बात याद रखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में हदीस है, ला ताअता फी मासिया, फर्मा बरदारी गुनाहों में नहीं, इन्नमा ताअतु फिल मारूफ, फर्मा बरदारी तो सिर्फ अच्छी चीजों में, जो फर्मा बरदारी करने कहा गया अच्छी चीजों में, गुनाह के कामों में नहीं। मतलब जहां साबित हो गया जहां गलत है, तो वहां पर हम उस आलिम की बात फॉलो करेंगे जो कुरान हदीस से बता रहे हैं, जिनके पास प्रूफ है। हाँ, ये बहुत अहम बात है। अब आ रहा सवाल आपकी बात, अब तक बात हो रही थी ना, अब आपकी बात। अगला पोल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सब ये बताइए, ये ऐसे फिक़ही मसाइल में, एक मिनट रुकिए पहले आगे बढ़ाइए। एक बात हम समझ लेते हैं, मैं जो पोल इंटेंड कर रहा था वो पोल नहीं, ये दूसरा है। फिक़ह के ऐसे मसाइल में रवादारी मतलब क्या? एक मिनट रुकिए, लॉन्च मत करें। मैं ये सवाल का से पहले आपको ये बता दूं, मतलब क्या? सुनिए, सच की तलाश है ना, सच की तलाश। अगर किसी के सच की तलाश नहीं हो, सही है गलत है? गलत है। मतलब क्या? हम तो हमारे बाप दादा के रास्ते पे चलेंगे, मतलब आपको सुन्नत जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको क्या सही है क्या गलत है जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है। आप बाप दादा का रास्ता फॉलो करेंगे, बाप दादा को जितना मिला वही करेंगे आपको और सच की तलाश नहीं है। ये एक रॉन्ग बात है। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज है कि बाज लोग होते हैं जिनमें टॉलरेंस नहीं होती है, रवादारी नहीं होती है। मतलब क्या? रवादारी किसे कहते हैं मालूम है? फिक़ही मसाइल की बात कर रहा हूँ। फिक़ही मसाइल में रवादारी किसे कहते हैं? कि अगर आप एक नतीजे तक, एक आलिम बोल रहे हैं ये सही बात है, और फिक़ही मसाइल में दूसरे आलिम बोल रहे हैं ये सही बात है, और आपने तहकीक किया, स्टडी किया, रुद्दुहु इलल्लाहि व रसूल किया, और अल्लाह ताला ने कहा फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, किसी भी मामले में अगर इख्तिलाफ हो जाए, किसी भी मामले, छोटा मामला हो बड़ा मामला हो, छोटा बड़ा उसमें स्पेसिफाइड नहीं है, बड़े बड़े मामले में छोटा हो बड़ा हो, अल्लाह क्या करना है? अल्लाह उसके रसूल की तरफ रेफर करना है। फिक़ही मामलों में भी अल्लाह उसके रसूल की तरफ रेफर करना है। फिक़ह के जो इख्तिलाफ है उसके अंदर आप एक बात बोल रहे हो, आपको लग रहा है कि ये आलिम जो बोल रहे हैं इनकी बात स्ट्रांग है, अब लेकिन फलां साहब बोल रहे हैं नहीं हमारे नजदीक वो स्ट्रांग है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ लोग होते हैं ना, उसके अंदर उनके अंदर टॉलरेंस नाम की चीज नहीं होती है। मतलब थोड़ा बर्दाश्त करो, वो कुरान और हदीस पे ही चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गलत भी हुए तो हमें उम्मीद यही है कि उन्हें वो एक अजर मिलेगा इंशाल्लाह। तो इसके अंदर क्या है? एक तरफ ये है कि सच की तलाश ही नहीं है, दूसरी तरफ ये है कि रवादारी नहीं है। चलिए पोल पे आ रहे हैं। पोल ये है कि ऐसे फिक़ही मामलों में, सवाल ये है, ऐसे फिक़ही मामलों में हमें क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना सही है? और सवाल फर्स्ट ये है कि रवादारी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन, आपको जो सही लगता है वही बताओ। फर्स्ट ऑप्शन कि होना चाहिए, रवादारी होना चाहिए, मतलब सब सही है यही मानना चाहिए उस हद तक। सेकंड ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सही सही है, गलत बोले वो कुफ्र है। और थर्ड ये है सही को सही मानना, गलत लगे तो उसके साथ भी थोड़ी गुंजाइश रखी जाए, थोड़ा सा नरमी रखी जाए गलत के ताल्लुक से भी। हाँ, मतलब क्या? फिक़ही इश्यूज के अंदर कोई अगर गलत भी आपको लग रहा है, प्रूफ की रोशनी में गलत है, तो भी थोड़ा सा कूल इट, मतलब थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा रवादारी रखो, थोड़ा सा बैर करो। ओके, इंशाल्लाह। इसके बहुत सारे दलाल हैं, वो मैं तकफीर का टॉपिक आगे आने वाला है, उसमें और डिटेल में समझाने वाला हूँ क्या बात है सवाल के जवाब में। लेट्स सी आप सबका क्या व्यू है। 3, 2, 1 एंड पोलिंग। रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ। एग्जैक्ट 60% लोगों ने कहा है कि सही को सही कहना चाहिए, गलत को सही तो सही है, गलत के साथ भी थोड़ी गुंजाइश रखना चाहिए। और 34 से 37% ये है, वो कहते हैं जो गलत बोले ना तो कुफ्र है। और बाज लोगों ने 5%, 3 to 5% लोगों ने ये कहा कि
क्या कहा, ये कह रहे हैं कि सब सही है। आइए आपके सामने मैं सही बात रखूं। सही बात क्या है ना मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सच की तलाश और साथ में आगे बढ़िए, पीछे आइए, टॉलरेंस भी होनी चाहिए। हाँ, मतलब सही बात क्या है, दरमियानी रास्ता। आपको दोनों चीज चाहिए, ट्रूथ एंड टॉलरेंस। मैं आपके साथ जो बात बोल रहा हूं ना, ये एक बहुत प्रेशियस बात बोल रहा हूं। ये बात आप हो सकता है बहुत स्टडी के बाद डिस्कवर करेंगे वन फाइन डे, लेकिन मेरे अल्फाज याद रखिए। क्या है? फर्स्ट थिंग, सच हासिल करने की कोशिश मत छोड़ना। बाज लोग क्या है ना, रवादारी का मामला इतना ज्यादा होता है, उनको बॉदर्ड ही नहीं है सच। अरे बोले सब सही बोलते हैं, 2+2 4 भी सही, 2+2 5 भी सही, 2+2 6 भी सही, सब सही। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो इतने हार्श होते हैं ना, बोले ये बात जो नहीं माना ना वो सब जहन्नम जाएंगे, मेरी बात जो नहीं माना वो लोग सब काफिर हैं, वो लोग सब कुफ्र कर रहे हैं। ये क्या बात है? थोड़ा सा बैर करो, थोड़ा बर्दाश्त करो, दलाइल ही फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इंसानी तौर पे मिस्टेक होती है ना, थोड़ा सा कूल, थोड़ा सा काम रहो, थोड़ा सा नरमी रखो। ये चीज के ताल्लुक से हमें मना किया गया है, इस तरह की सख्ती हमें मना की गई। तो सही बात क्या है मालूम है? दोनों, ये एक्सट्रीम भी नहीं वो एक्सट्रीम भी नहीं, दोनों चाहिए। हमें सच्चाई भी चाहिए और हम टॉलरेंस भी रखेंगे, रवादारी भी रखेंगे, बर्दाश्त भी करेंगे। कोई अगर दूसरा ओपिनियन का है उसको भी थोड़ा बैर करेंगे। हाँ, फिक्री इख्तिलाफ की बात है। हाँ, अकीदे के अंदर नहीं, कोई कहे अल्लाह दो है तो नहीं, वो बात में नहीं, लेकिन फिक्री इशूज है उसके अंदर कुछ बर्दाश्त किया जाएगा, क्योंकि वो लोग सही तक ही पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। ये इस ताल्लुक से कुछ बात है। तो सही जवाब क्या है? सही को सही मानना चाहिए, लेकिन गलत के साथ थोड़ी गुंजाइश रखना चाहिए। 60% लोगों ने जो जवाब दिया था ना, वो सही जवाब है एक्चुअली। ये टॉपिक और डिटेल में आप समझना चाहते हैं ना, तकफीर का एक टॉपिक आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो बाद में आएगा, वो हम तभी इंशाल्लाह डिटेल में समझेंगे। अब आते हैं हम हमारे थर्ड सेक्शन पे। मैंने अभी आपके साथ फॉर्मूला शेयर किया, ओके? अब मैं वापस रेगुलर फ्लो में आ रहा हूं। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक बात याद रखिए जिंदगी में, किसी भी आलिम की बात को कभी भी कुरान और हदीस के ऊपर मत रखना, चाहे कितने भी बड़े क्यों ना समझो आप उन्हें, उनका मकाम कुरान और हदीस के ऊपर कभी मत रखना। क्यों? बहुत ही खतरनाक बात है कि ये उनको जैसे रब बनाना है। देखिए, सारे आलिमों ने, सारे स्कॉलर्स हमें कहां ले जा रहे हैं? कुरान और हदीस की तरफ। अब अगर कोई शख्स कुरान और हदीस के ऊपर कोई आलिम को रख दे उनका मकाम, तो फिर क्या होगा? ये ऐसी बात है जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह तौबा में सूरह 9 आयत नंबर 31, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह। वो लोगों ने अपने अहबार और रुहबान, अपने आलिमों को, दरवेशों को, अपने रबाइस को, प्रीस को, उन्हें रब बना दिया। रब किनकी बात हो रही है? जूस एंड क्रिश्चियंस की बात हो रही है, ओके? मुझे एक भाई मुर्तुजा का हाथ ऊपर दिख रहा है, मैं उनसे ही सवाल पूछता हूँ जरा, और अब्दुल हलीम, दो लोग जवाब दें कि यहां पर जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है? जूस एंड क्रिश्चियंस की। क्या बात हो रही है? वो लोग क्या करते हैं? रब बना दिया। अच्छा, आप में से किन्होंने क्रिश्चियंस को देखा है? क्रिश्चियंस को, क्रिश्चियन कभी होता है मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं? एक काम करिए, अब्दुल हलीम या यहाँ पे शायद कोई स्टूडेंट होंगे। यस, मैं नीचे से दे रहा हूँ क्योंकि जिन्होंने बाद में हाथ उठाया इनको मौका दीजिए, नीचे वालों को दीजिए। हाँ, बताइए, सवाल ये है कि आप बताइए, क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि क्या वो लोग अपने जो फादर्स होते हैं ना, जो प्रीस्ट होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं? कौन बताएगा? यस, जो लोगों को अनम्यूट ऑप्शन मिला है वो लोग बताएं। वालेकुम सलाम जी। पूजा करते हैं वो अपने फादर की? करते हैं? वेरी गुड, मेरा यही सवाल था। करते सिस्टर ने बताया है और उन्होंने देखा, और क्या ये बात को कोई और कंफर्म करना चाहेगा कि क्रिश्चियंस जो होते हैं ना, उनके जो पादरी होते हैं उनकी पूजा एक्चुअली नहीं करते? यस, कौन बताएगा ये बात? उनकी बातों को सर पत्थर की लकीर मानते हैं। यस ब्रदर अब्दुल हलीम, जोर से बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर वो लोग इतना मतलब उनके पीछे इतना चलते हैं कि वो जो बोलते हैं उसको पत्थर की लकीर ही समझते हैं। क्या मेरा सवाल क्या है, पूजा करते हैं कि नहीं करते? उनकी वर्शिप करते हैं कि नहीं करते सर? पूजा नहीं करते। ओके, यहाँ पे कुरान की आयत आपके सामने है जी। क्या है सामने? कि
कुरान की आयत ये है कि वो लोगों ने उन्हें रब बना दिया, रब, वो लोगों ने उन्हें रब बनाया। अल्लाह ताला ने क्या कहा? रब बनाया। अब यहाँ सवाल क्या है? वो लोग वर्शिप तो नहीं करते हैं, फिर क्या मतलब है? यही सवाल आदी इब्न हातिम रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो जवाब दिया ना, उसमें एक इतनी बड़ी बात मिलती है कि ये बात अगर सिर्फ लोग समझ जाए ना तो दे विल बी, वो लोग इस बारे में घबराएंगे, इसको लाइटली नहीं लेंगे ये टॉपिक को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अमाइन्नहुम लम यकुनु याबुदूनहु, वो लोग उनकी वर्शिप नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, कहा नहीं, इबादत नहीं करते हैं वो लोग अपने पादरी की, रबाइस की, प्रीस्ट की वर्शिप नहीं करते हैं। वलाकिन्नहुम, हाँ, इदा हर्रमू अलैहिम शैयन वलाकिन्नहुम कानू इदा हल्लू लहुम शैयन इस्तहल्लूहु व इदा हर्रमू अलैहिम शैयन हर्रमूहु। थोड़ा सा ऑर्डर ये पावर पॉइंट में अरबिक में चेंज हो गया है। वो लोग जब उनके लिए कोई चीज हलाल करते हैं ना, वो लोग हलाल समझते हैं, और जब वो लोग कोई चीज हराम करते हैं तो हराम समझते हैं। मतलब क्या है आपको मालूम है? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अप्रिशिएट करो इस बात को। हमारे दीन के अंदर हलाल और हराम कहां से आता है मालूम है? कुरान हदीस से आता है। कोई आलिम बोले आज मैंने सोचा कि ये बोलना हराम है, आलिम के ऊपर है ही नहीं, कुरान और हदीस से उनको प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ होगा तो हम सब मानेंगे, प्रूफ नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। लेकिन क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में ऐसा नहीं है। मिसाल है, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। पॉलीगमी, ताअद्दुद अज़वाज, एक से ज्यादा शादी बाइबल में मना नहीं है। कई सारे बाइबल के अंदर बड़े बड़े फिगर्स है, इब्राहिम की एक से ज्यादा बीवी है, कई सारे फिगर्स है, एक से ज्यादा शादियां अलाउड है। लेकिन हम देखते हैं कि 1950s में क्रिश्चियन जो सारे जो प्रीस्ट साथ में मिलकर काउंसिल के अंदर उन्होंने डिसीजन लिया कि पॉलीगमी हराम है, प्रोहिबिटेड है। उनके स्क्रिप्चर में मना नहीं है, उनके प्रीस्ट ने डिसाइड किया। ये एक मिसाल है सिर्फ। उनके यहाँ पे हलाल और हराम जो होता है ना, जो उनके पादरी प्रीस्ट डिसाइड कर ले वो है हलाल और हराम, जायज नाजायज, लॉफुल अनलॉफुल, परमिसिबल प्रोहिबिटेड। ये कोई उनके स्क्रिप्चर से होना जरूरी नहीं है। जो वो लोग मिलकर डिसाइड करे वो हलाल है, जो वो लोग मिलकर डिसाइड करे वो हराम है। अल्लाह ने कहा यही तो रब बनाना है, अरबाब मिन दुनिल्लाह, ये रब बना दिया, रब। हलाल और हराम कहां से आएगा? कुरान से आएगा, हदीस से आएगा। अगर हम लोग अपने आलिमों को ये मकाम देंगे जो आप देख रहे हैं पावर पॉइंट में ऊपर, अगर हम अपने आलिमों को अगर ऐसा कर दें कि नहीं नहीं मैं अपने आलिम की बात नहीं छोड़ने वाला हूं, कुरान हदीस है तो क्या हुआ, फलां स्कॉलर के पास कुरान है, हदीस है, प्रूफ है, मैं अपने आलिम की बात नहीं छोड़ूंगा। अगर ऐसी सोच है, किसी की सोच है, मैं नहीं कह रहा हूं है, अगर जिसकी है तो उसने क्या किया? उसको डरना चाहिए कि कहीं उसने रब तो नहीं बना दिया। ये पॉइंट याद रखिए, फर्स्ट पॉइंट है, 3 पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कुरान की आयत है, बहुत ब्यूटीफुल आयत है, सूरा 33, याद करिए इसे, 33 आयत नंबर 36, हाँ 33 अल्लाह ताला ने फरमाया वमा कान लिमुमिनिन, किसी भी मोमिन मर्द, हाँ, वला मोमिनतिन, या मोमिना औरत, उसके लिए सही नहीं है, इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन, जब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाए, अन यकुन लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, कि उस मामले में उनके पास इख्तियार बाकी रहे। मतलब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आने के बाद इख्तियार चॉइस बाकी रहे। ऐसा मोमिन के साथ नहीं होता, मोमिना औरत के साथ नहीं होता। मतलब अगर आपको मुझे क्लियरली मालूम पड़ गया ये अल्लाह का फरमान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, उसके बाद वी डोंट हैव चॉइस, हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास चॉइस नहीं बाकी रहता है। क्यों बाकी नहीं रहता है? मतलब क्या? मतलब ये कि आई विल थिंक अबाउट इट, मैं सोचूंगा कि मैं मानता हूं नहीं मानता हूं। ये होता ही नहीं है। ये मोमिनों के साथ ऐसा नहीं होता। क्या होता है मामला? मोमिनों के साथ ऐसा होता है कि किसी भी मोमिन मर्द, मोमिना औरत के लिए अल्लाह उसके रसूल का फैसला आने के बाद इख्तियार बाकी नहीं। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द दल्ल दलालन मुबीना, जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करे बहुत दूर की गुमराही पे चला गया है। ही इज गॉन टू फार अवे, बहुत दूर चला गया, नाफरमानी करे। और एक और चीज, आखिरी फैसल, मतलब लास्ट जज, फाइनल जज, कुरान की आयत ये देखिए, सूरा 4 आयत नंबर 65, अल्लाह ताला ने फरमाया फला व रब्बिका, और नहीं आपके रब की कसम। मैं 3 हाथ ऊपर देख रहा हूँ, अहमद सादात, मिनहाजुल इस्लाम, यासिर भाई, 3 लोग अपने, आप बताओ मुझे कि सवाल मेरा ये है, आपके रब की कसम अल्लाह ने कहा, मैंने आपको अनम्यूट दिया ऑप्शन 3 लोगों को, आपके रब की कसम, तो कौन, किसकी कसम अल्लाह ने खाई? कौन बता सकता है किसकी कसम खाई अल्लाह ने? बताइए। नहीं, अपनी सिफत की कसम। ओके, फिर से ट्राई करिए। कौन बताए? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपने ट्राई किया, सही जवाब नहीं। हाँ,
खुद की कसम, अल्लाह ने किसी कसम खाई है? इस आयत में जो कसम है ना, जैसे कुरान में कई कसमें हैं, अल्लाह ताला जब किसी की कसम खाता है किसी चीज की, जैसे अल्लाह ताला ने वतीन व जैतून, हाँ कई कसमें हैं कुरान हदीस में, बस म्यूट कर ले। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने किसकी कसम खाई है? अल्लाह ने खुद की जात की कसम खाई है, हाँ खुद की जात की कसम खाई है। और क्या कहा, क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? फला व रब्बिका, आपके रब की कसम, ला युमिनूना, उनके पास ईमान नहीं, हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम, जब तक आपके अपने आपस के सारे इख्तिलाफ में आपको फाइनल जज नहीं बना लेते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फाइनल जज नहीं मानते हैं, तब तक अल्लाह ताला ने कहा दे डोंट हैव फेथ, ईमान नहीं उनके पास। हाँ, ला युमिनून कहा गया, मतलब हमारे जो इख्तिलाफ होते हैं ना, अरे ये सही है ये सही है, फाइनल जज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक नहीं मान लेते हैं, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि फाइनल जज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने कहा ला युमिनून, ईमान नहीं है। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत, फिर उसके बाद अपने दिलों में कोई रुकावट नहीं पाते। मतलब क्या? एक है एक्सेप्ट करना, फाइनल जज मान लिया, लेकिन मान लिया बहुत दिल में रुकावट है, ओके ओके मान लिया, ओके ओके मान लिया, वैसा नहीं। हरजम मिम्मा क़दैत, थोड़ी भी हरज, थोड़ी भी मिम्मा हरजम मिम्मा क़दैत, थोड़ी भी रुकावट नहीं पाते, दिल में हर्ज, तकलीफ ना महसूस करें, दिल में कोई रुकावट ना महसूस करें, बैरियर डिस्कम्फर्ट ना महसूस करें। वो युसल्लिमु तस्लीमा, मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली कबूल करें, पार्शियल कबूल करें, पार्शियल नहीं करें, ऐसा नहीं। 3 चीजें दी हुई, यानी एक तो फाइनल जज माने, थोड़ी भी दिल में रुकावट ना आए, और पूरी तरह से कबूल करें। मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइनल जज है। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में 3 बातें बोली है। नंबर 1, उन्हें रब नहीं बनाना है। नंबर 2, मोमिन मर्द मोमिना औरत के पास चॉइस नहीं है, चॉइस ही नहीं है। अल्लाह के रसूल की बात आ गई, कुरान की बात आ गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई, अल्लाह का कलाम आ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ गया, स्कॉलर दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने खुद से निकाले। इनकम्प्लीट नॉलेज इज डेंजरस, वो बात हो चुकी है। 2 स्कॉलर्स में प्रूफ आ गया, उसके बाद में कोई बोले नहीं मैं देखता हूं, सोचता हूं, मानूंगा नहीं मानूंगा, कबूल करूंगा नहीं कबूलूंगा। यू डोंट हैव चॉइस, यू आर अ बिलीवर, आप ईमान वाले हो, आपके पास चॉइस ही नहीं है। और अल्लाह ताला ने क्या कहा? फाइनल जज नहीं बनाते ना, ला युमिनून, तुम्हारा ईमान नहीं, और दिल में रुकावट ना पाए, थोड़ी भी रुकावट ना पाए, पूरी तरह से कबूल करें। ये बात 3 पॉइंट्स हमने देखा। अब यहाँ पे एक्चुअली देखें ना तो टॉपिक बहुत सॉल्व हो चुका है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि किसी आलिम की पैरवी में जिद से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, मालूम है आपको? 3 बातें में देखेंगे, प्रॉब्लम्स, 3 प्रॉब्लम। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है ना, सुन्नतें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ना, ऐसा हो सकता है ना कि किसी आलिम के पास सुन्नतें हैं, सर्टेन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, और फिर क्या होगा? वो सुन्नतें हमसे छूट जाएगी। मतलब अगर आप बंधे हुए हो कि हम तो इनके ही मानने वाले हैं, मैं अपने मस्जिद के इमाम की बात नहीं छोड़ूंगा, मैं हमारे गली के इमाम साहब, हमारे एरिया के इमाम साहब, हमारे अब्बा के पीर, मैं उनकी बात नहीं छोड़ूंगा। अगर आप बंधे हुए हो तो फिर क्या होगा? वो सारे आलिम्स जिनके पास जो दूसरी सुन्नतें हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो तो छूट गई ना, आपसे छूट गई ना। चलो मैं आप सबसे एक टफ सवाल पूछना चाहता हूँ, टफ सवाल। 1 मिनट, अल्लाह रहम करे, 1 मिनट रुकिए जरा। सवाल आपके पोल में आएगा डायरेक्टली, पोल में जाइए, पोल देखिए आपकी स्क्रीन पर। सोचो, नीचे 8, सोचो आके आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा पर्सनल सवाल है। सोचो अगर आपका एक बच्चा है, पहले सवाल सुनो, जवाब मत दो, 2 मिनट सुनिए। आपका बच्चा है, हाँ आपका बच्चा है। जिनके पास बच्चे हैं वो तो बात समझ सकते हैं, जिनके पास बच्चे नहीं है ना, वो इमेजिन करो, हाँ, कि अगर आपके पास बच्चा हो और आपका बच्चा गुम हो गया। सोचे आपने? सब लोग सुन रहे हैं? आपका बच्चा गुम हो गया, फिर आपका वो बच्चा आपके दुश्मन को मिल गया, दुश्मन, ओके। अब अगर आपका दुश्मन आपके बच्चे को आपके पास वापस लेकर आएगा तो आप बच्चे को वापस लेंगे नहीं लेंगे? 2 ऑप्शन दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन वापस लेंगे, सेकेंड ऑप्शन अगर दुश्मन लाएगा ना तो बोले तुमने लाया होना नहीं चाहिए, हाँ, दुश्मन लाता है तो तुम लाया हो तो नहीं चाहिए, आप वापस लेंगे या नहीं लेंगे बच्चे को वापस? दुश्मन लेके आ रहा है, दुश्मन, सोच लो, सोच समझ के जवाब दीजिए।
कि बच्चे को आप वापस लेंगे नहीं लेंगे। एक बहुत अहम पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसलिए सोच समझ के जवाब दीजिए। हाँ, तो 3 सेकंड और है। 3, वापस लेंगे तो दबाइए वापस लेंगे, बच्चे को वापस नहीं लेंगे, दुश्मन लाया बोले तुम लाओ, नहीं चाहिए, लेके आओ वापस, नहीं चाहिए, तुम लाओ ना, तुम्हारी लाई हुई चीज मुझे नहीं चाहिए। ओके, 3, 2, 1। मुझे ताज्जुब है बाज लोग इतना सोच रहे हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। चलो, रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर है। 99% लोगों ने कहा, दोनों जगह पर 99% लोगों ने कहा बच्चे को वापस लेंगे। हाँ, 1% ऐसे भी लोग हैं जो बोल रहे हैं दुश्मन लाया तो नहीं लेंगे। वाह, उनमें से कोई जो कहते हैं ना दुश्मन लाएगा तो नहीं लेंगे, मैं उनमें से किसी से बात करना चाहता हूँ कि क्यों नहीं लेंगे, या ऐसा करते हैं, टाइम कम है मैं नहीं बात कर सकता। हम मेन पॉइंट अंडरस्टैंड करते हैं कि 99% लोग वापस लेंगे। और जी यस सिस्टर, क्यों वापस नहीं लेंगे आप बच्चे को? दुश्मन लाया तो क्यों नहीं लेंगे? म्यूट हो गए वो। यस, 2 लोग और सिस्टर आफरी और ये आरिफा मंसूर। हाँ, आप लोग क्यों नहीं लेंगे बच्चे को वापस? नहीं लगता, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, हालांकि मैंने तो ऑप्शन अनम्यूट कर दिया हुआ है। ओके, ठीक है, चलिए। ओके, मेरे ख्याल से 99% लेंगे, वही आंसर पे जाते हैं। जी हाँ, क्यों नहीं लेंगे आप वापस बच्चे को? कोई बात नहीं। जी जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, कोई बात नहीं, आप शायद आवाज नहीं आ रही, म्यूट कर दीजिए। आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आप सबसे। सवाल क्या है ना कि बच्चे को तो अल्हम्दुलिल्लाह सबने कहा वापस लेंगे, और शायद ही कोई होगा जो मतलब सवाल नहीं समझे होंगे वही बोलेंगे ना ऐसा जवाब। सवाल ये है कि आपका दुश्मन लाया तो भी आप बच्चे को वापस लेंगे। अब आप बताओ, अगर कोई ऐसा शख्स है जिसे लोग बोले ये हमारे आलिम नहीं है, वो अगर कुरान हदीस से कोई सुन्नत देते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमें हमारे बच्चों से ज्यादा प्यारी है, होनी चाहिए, हमें हमारी जान से ज्यादा प्यारी होनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत मिल जाए ना, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की चीज है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप बच्चे को तो लेंगे ना वापस? हाँ, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी लेना चाहिए, चाहे जो कोई ले आए? अब वो ये कोई कि भाई हमारे आलिम, हम इनको नहीं मानते, हमारे आलिम नहीं है, ये वो आलिम है, हम उनकी बात नहीं लेंगे, तो ये देखना चाहिए ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ये जो एटीट्यूड लोग हदधर्मी वाला लेते हैं ना, उसमें सबसे पहला नुकसान ये होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सुन्नतें हाथ से छूट जाती है, लोगों के हाथों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें छूट जाती है, बहुत अफसोस की चीज है। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। सेकेंड चीज, कई बार ऐसा हो जाता है ना कि सुन्नत, कुरान और सुन्नत के ऊपर लोग रख देते हैं अपने आलिम की बात को, कि मैं इनका मानने वाला हूँ, ये इमाम, ये आलिम है, उनकी बात को कुरान और हदीस के ऊपर रख देते हैं। गलती में, एक गलती है, स्कॉलर्स ने नहीं बताया, लेकिन जब हठधर्मी पे लोग उतर आते हैं ना, स्टबर्ननेस, तो ये होने के बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं। और इस चीज को क्या कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा? रब बनाना है, रब। यू वर्शिप अल्लाह, अल्लाह ने आपको आसमान और जमीन को बनाया, आपको बनाया, सब चीजें, हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं, फिर हम रब का दर्जा किसी और को दे दें, ये गलती में, ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज हम ये देखते हैं कि इसमें नुकसान क्या है ना, एक और तीसरा, इख्तिलाफ हल नहीं होते। मतलब इख्तिलाफ हल करने का फॉर्मूला अल्लाह ने बताया क्या फॉर्मूला है? कुरान हदीस की तरफ जाओ, वहां रिफर करो। अब लोग वो रिफर करना जब छोड़ देते हैं तो इख्तिलाफ हल नहीं होते हैं, इख्तिलाफ वहीं पे बाकी रहते हैं। क्या हुआ? बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान है कि हमारे इख्तिलाफ जमा 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 जमा, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, सब इख्तिलाफ जमा रहेंगे, क्योंकि हल करने का जो फॉर्मूला है ना, वो लोग फॉलो नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम, इख्तिलाफ सबके सब जमा रहेंगे। ओके, इंशाल्लाह ये समझना है 4 नुकसान। ओके, अब एक बहुत अहम सवाल, जरा ये बताओ भाई, हम जो बात कर रहे हैं ना, ये आलिम से गलती हुई, वो आलिम के पास प्रूफ है, मेरा सवाल ये है, यहाँ पोल है आपके सामने, इतने बड़े उलमा गलत कैसे हो सकते हैं? इतने बड़े उलमा, बड़े बड़े, मैं टॉप लेवल के उलमा की बात कर रहा हूँ, क्या वो लोग गलत कैसे हो सकते हैं? तो ये आप इस सवाल का जवाब दें। 5 नंबर। फर्स्ट ऑप्शन, गलत नहीं हो सकते, बड़े उलमा गलत नहीं हो सकते। नंबर 2, सेकंड ऑप्शन, गलत ही थे वो। थर्ड,
وہ غلط نہیں تھے, ان سے غلطی کسی مسئلے میں ہو سکتی ہے. ہاں, نمبر 4 آئی ڈونٹ نو. تو فرسٹ آپشن غلط نہیں ہو سکتے, سیکنڈ آپشن غلط ہی تھے, تھرڈ ارے میں اردو یہاں لانچ کرنا بھول گیا. اوکے, تھرڈ آپشن کہ وہ غلط نہیں تھے, ان سے غلطی کسی مسئلے میں ہو گئی. فورتھ ہے آئی ڈونٹ نو. جو آپ کو صحیح جواب جانتے ہیں آپ وہ جواب دیجیے. اور میں آپ کے سامنے بہت بیوٹیفل سیکشن آپ کو یہ آج کے لیکچر کا ایک بہت ہی خوبصورت سیکشن اس کے بعد سے شیئر کروں گا. 3 2 1 کیا ہو اینڈ پولنگ. ریزلٹس آپ کی اسکرین پر. 94 سے 98% نے کہا وہ غلط نہیں تھے, غلطی ان سے ہو سکتی ہے کسی مسئلے میں. اور 1% سے 2% نے کہا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتے. چلیے ہم لوگ یہ سوال کا جواب دیکھتے ہیں کیا ہے صحیح جواب. اوکے, آگے بڑھ رہے ہیں ہم لوگ, دیکھ رہے ہیں صحیح جواب کیا ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات اس میں صحیح جواب ایکچولی تو یہ ہے, میں آپ کو بتا کر آگے بڑھوں گا کہ وہ غلط نہیں تھے. علماء بڑے بڑے امام جو ہے نا وہ غلط نہیں تھے, لیکن ان سے غلطی ہو سکتی ہے. 3 دلائل. فرسٹ دلیل, پہلی دلیل انسان تھے, وہ انسان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کل ابن آدم خطا, سارے کے سارے آدم کی اولادوں سے مسٹیک ہو سکتی ہے. بعض لوگ کیا بولتے ہیں, نہیں وہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے, وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے, 150 ہجری میں پیدا ہوئے, بہت بڑے اسکالر تھے. تو آپ بتاؤ آدم کی اولاد تھے کہ نہیں تھے؟ تھے نا. سارے آدم کی اولاد سے مسٹیک ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آدم کی اولاد میں سے ہیں ان سے بھی بھول ہوئی, لیکن اللہ نے وہی بھیجی. انکا بھی آیونین قرآن میں کہا گیا, آپ ہماری نظروں میں ہو. نظروں میں ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کے تعلق سے اللہ نگراں ہے. اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرسنل طور پہ کوئی بھول ہوئی, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ شکن آ گئی, عبس وتولی آیت نازل ہو گئی, نبی کے چہرے پہ شکن آ گئی, نبی پلٹ گئے. انجاہ الاعمى کہ نابینا صحابی نے آ کر ڈسٹرب کیا, انٹرپٹ کیا. اگر یہ وہی نہیں آتی تو یہ شکن آنا سنت بن جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ نہیں یہ غلطی تھی, ایسے شکن نہیں آنا چاہیے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح ہوئی اس میں. تو یہاں کیا ہے, کل ابن آدم خطا, سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی. ہاں 80 ہجری میں پیدا ہونے والے امام ابو حنیفہ سے بھی ہوئی, 150 ہجری میں پیدا ہونے والے امام شافعی سے بھی ہوئی, 93 ہجری میں پیدا ہونے والے امام مالک سے بھی ہوئی, 164 ہجری میں پیدا ہونے والے امام احمد بن حنبل سے بھی ہوئی رحمہم اللہ. تو ہم کیا دیکھتے ہیں, سب آدم کی اولاد سے خطائیں ہوتی ہیں, مسٹیک تو بھول تو ہوتی ہے, انسان ہے بھائی, انسان ہے ہم لوگ. وخیر الخطائین التوابون, خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں بار بار جو توبہ کرتے ہیں. توبہ کرنا یہ ہمارے لیے ایک اہم بات آئی. اب آئیے سیکنڈ بات. بعض لوگ ایک بات سمجھنے کی بات کیا ہے, مسٹیک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ کوئی حدیث ان تک نہ پہنچی ہو. ہاں, اب کو لوگ کیا بولتے ہیں, 80 ہجری میں پیدا ہوئے ان تک حدیث نہیں پہنچی, اور آپ 1400 سال بعد پیدا ہوئے آپ کے پاس آ گئی. آپ بتاؤ کہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے نہیں پہنچی. ہم 80 ہجری کی نہیں بات کرتے, 2 منٹ آرگیومنٹ کے لیے. آرگیومنٹ ہم 80 ہجری نہیں 70 نہیں 60 بھی نہیں 50 بھی نہیں 40 30 20 بھی نہیں, 0 ہجری سے پیدا ہونے والے والوں کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے مثال کسی اور کی نہیں رکھ رہا ہوں, عمر رضی اللہ عنہ کی رکھ رہا ہوں. ایک مثال ہے, حدیث آ رہی ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے. استاذن ابو موسیٰ علی عمر, ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اجازت مانگی. ہاں, دروازے پہ آئے, عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ اجازت مانگی. کانہ وجدہ مشغولا, فکانہ وجدہ مشغولا, انہیں ملا کہ وہ شاید بزی تھے, جواب نہیں دے پائے, بزی تھے وہ. تو فرجع, چلے گئے واپس. قال عمر الم اسمع صوت عبداللہ بن قیس, عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے شاید عبداللہ بن قیس کی آواز سنی. تو فاذنوا له, انہیں بلاؤ. آواز جانتے تھے ابو موسیٰ کی آواز ہے, عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز ہے, بلاؤ. فدعی له فقال, جب جا چکے تھے تو ان کو بلوایا, بولے آپ کی آواز سنا تھا میں, کیا ہوا؟ فقال ما حملك على ما صنعت, ایسا آپ نے کیوں کیے, چلے کیوں گئے؟ فقال, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا ان كنا نؤمر بهذا, ہمیں اسی چیز کا حکم دیا گیا تھا. کیا ہے حدیث؟ دروازے پہ آؤ, 3 بار سلام کرو, 3 بار اجازت مانگو, جواب ملے تو رہو نہیں تو چلے جاؤ. تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا ان كنا نؤمر بهذا, ہمیں اسی چیز کا حکم دیا گیا تھا. قال فاتنی علی هذا ببینہ, عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا پروف لے کے آؤ, یہ جو بات بولے نا آپ نے اس کا پروف لے کے آؤ.
होता क्या है ना, कभी कभार अच्छों के साथ भी सख्ती की जाती है ताकि बाकी लोग समझ जाएं। अबू मूसा अशरी को उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि प्रूफ लेकर, अबू मूसा अशरी गए। हाँ, और फिर जब जाकर कुछ अंसारी सहाबा थे, बैठे थे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि ओके, हम में जो सबसे छोटे हैं अबू सईद खुदरी, उनको भेजेंगे। अबू सईद खुदरी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और कहा कद कुन्ना नुमरु बिहादा, हाँ हमें इस बात का हुक्म दिया गया था। उस बात पर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्फाज सुनिए, और यहाँ पे हमारे सवाल का एक बहुत ब्यूटीफुल जवाब है। क्या है? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा? खफी अलैया हादा मिन अमरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहान सफ़्क़ु बिल अस्वाक़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात मुझसे छुपी रह गई क्योंकि मैं बाजार में, बिजनेस में बिजी हुआ करता था। हाँ, मैं अस्वाक़, मैं बाजारों में सफ़्क़ु, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ना बिजी हुआ करता था, कारोबार में बिजी हुआ करता था, छूट गई मुझसे। अब आप बताओ, जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे बड़े सहाबी से कोई हदीस मिस हो सकती है, तो 80 हिजरी में पैदा होने वाले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मिस नहीं हो सकती, या 150 हिजरी में पैदा होने वाले इमाम शाफी से मिस नहीं हो सकती। सहाबा में कई हदीसें आपको मिलेगी। जब अब्दुल्लाह इब्न उमर को पता चला कि जनाजे की नमाज पढ़ने में 2 के बराबर नेकी मिलेगी, हाँ, तो उन्होंने कहा पता नहीं मुझसे कितने खैरात मेरे छूट गए। ऐसी कितनी हदीसें हैं कि एक सहाबी को नहीं पता थी। जब उनको नहीं पता हो सकता है, तो क्या उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ नहीं हो सकता? कितनी ब्यूटीफुल बात है। हाँ, एक और बहुत अच्छी हदीस आपको मैं सुना रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हदीस पता है लेकिन फैसला करते टाइम पे याद ना है। मैं आपको इसकी 2 मिसालें बताऊंगा। हम देखते हैं कि हुदैफा बिन यमान के बारे में आता है। अन्ना हुज़ैफा बिन यमान बहुत बड़े नॉलेजेबल सहाबी, फितनों के मामले में एक्सपर्ट सहाबी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी उनसे मशवरा किया करते थे, उनसे गाइडेंस लिया करते थे। नॉलेजेबल सहाबी, उनके बारे में देखिए। हुज़ैफा बिन यमान के बारे में आता है, अम्मा नास बिल मदाइन अला दुकान, वो लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे अल दुकान, मदाइन शहर के अंदर, मदाइन में अल दुकान चबूतरे पे थे, मतलब प्लेटफॉर्म जैसा कुछ था, उसके ऊपर वो ऊपर थे। फ़अख़ज़ अबू मसूद बिक़मीसिही, नमाज पढ़ा रहे थे, यानी इमाम ऊपर था, इमाम प्लेटफॉर्म पे ऊपर, बाकी लोग नीचे। अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें उनकी कमीज पकड़ी और खींचा। फ़लम्मा फ़रग़ मिन सलातिही, जब नमाज से फारिग हो गए, क़ाल अलम तालम अन्नहुम काना युनहौना अन ज़ालिक, क्या आपको पता नहीं है? अब कौन पूछ रहा है? अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। किससे पूछ रहे हैं? हुदैफा बिन यमान से। क्या आपको पता नहीं है ऐसा करने से हमें मना किया गया था? ऐसा यानी क्या? ऐसा यानी कि इमाम ऊपर मुक्तदी नीचे, ऐसा करने से मना किया गया था। ऐसे इमाम ऊपर हो, मना है। अब उनका जवाब सुनिए। क़ाल बला क़द ज़करतु हीना मददतनी, हुदैफा बिन यमान ने कहा कि हाँ, मुझे तब याद आया जब आपने मुझे खींचा, जब आपने खींचा ना तब मुझे जाके याद आया। हाँ, तो हम क्या देखते हैं, कब उन्हें हदीस मालूम थी, लेकिन इंसानों के साथ होता है, आपके साथ, मेरे साथ, हम सब जानते हैं कि कोई चीज मालूम होती है फिर कभी ध्यान से निकल जाती है। तो क्या ऐसे बड़े इमामों के साथ नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। एक और मिसाल, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास उतिया उमर भी मजनूना, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक मजनूना लाई गई, पागल औरत। कद ज़नत, उसने जिना किया था। फस्तशारा फीहा उनास, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों से मशवरा किया। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मशवरा करते थे ना बड़े बड़े सहाबा से, बदरी सहाबा से। बाज लोग क्या बोलते हैं, हमारे इमाम के मशवरा करते थे, इतने बड़े बड़े उनके साथी थे। बिल्कुल, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मशवरा करते थे। उन्होंने मशवरा किया, बड़े बड़े सहाबा से मशवरा किया कि ये जिना की है औरत, पागल औरत है, उसने जिना किया है। और फिर क्या फैसला करें? फामरा बिहा उमर अन तुरजम, उन्होंने, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फैसला किया कि इसको रजम किया जाए, संसार किया जाए। इस्लाम में जिना की बहुत सख्त सजा है, क्योंकि इस्लाम बिलीव करता है कि पाकी चेस्टिटी सोसाइटी में, माशरे में किया जाए। और अगर साबित हो गया कि किसी शख्स ने जिना किया है, 4 चश्मदीद गवाह जो आके गवाही दे दें, और शादीशुदा है तो उसके लिए डेथ पेनल्टी है, वो भी पत्थर मार मार के। और अगर शादीशुदा नहीं है तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे, आदमियों को शहर बदल कर दिया जाएगा, शहर से बाहर कर दिया जाएगा 1 साल के लिए, और ये सजा है उनके लिए। तो यहाँ पर क्या है मामला कि उस औरत के ताल्लुक से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फैसला किया कि इसको संसार किया जाए, मैरिड रही होगी। तो अब उस औरत को ले जाया जा रहा था। कालू मुर्रा बिहा अला अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब के पास से गुजरे रिदवानुल्लाहि अलैहि। फकाला मा शानु हादिही, अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि क्या मामला है, व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है? कालू मजनूना बनी फुलान ज़नत अमरा बिहा उमर अन तुरजम, ये फलां कबीले, बनु फलां कबीले की औरत है, पागल है, इसने जिना किया है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फैसला किया कि इसको संसार किया जाए। फ़क़ाला इरजिउ बिहा, अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ऐसा करो, इसे वापस ले जाओ,
وہ بھی گئے. فاتاہو ثم اتاہو فقال یا امیر المومنین, کہا اے امیر المومنین, عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کتنے عزت سے بات کریں, اے امیر المومنین, اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاث, کیا آپ کو پتا ہے 3 لوگوں کی قلمیں اٹھی ہوئی ہیں. حدیث سنا رہے ہیں ہمیں. ان المجنون حتی یبرا, پاگل کی جب تک عقل نہ آ جائے اس کی قلم اٹھی ہوئی. قلم اٹھی ہوئی ہے. دیکھیے اسلام کیا ہے نا, انصاف کا دین ہے, سچائی کا دین ہے, رحمت کا دین ہے. 3 لوگوں کی قلم اٹھی ہوئی. پہلا مجنون, پاگل, جب تک اس کی عقل نہ آ جائے نا اس کی قلم اٹھی ہوئی ہے. یعنی اعمال جو لکھ رہے ہیں نا فرشتے, ان کی قلم اٹھی ہوئی ہے, یعنی فرشتے اعمال نہیں لکھ رہے ہیں. ان النائم حتی یستيقظ, سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے, سویا ہوا شخص جاگ نہ جائے. وعن الصبی حتی یعقل, بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے, بلوغت تک نہ پہنچ جائے, اس کی قلم اٹھی ہوئی ہے, یعنی اس کے گناہ نہیں لکھے آ رہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے حدیث؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سن. قال بلا, کہا ہاں پتہ ہے. قال فما بال هذه, تو اس کا دوش کیا ہے؟ قلم اٹھی ہوئی ہے یعنی دوش نہیں ہے. ہاں, فما بال هذه ترجم, تو اس کا دوش کیا ہے کہ اس کو رجم کی سزا دی جائے. دوش نہیں ہے تو سزا کیوں ہے؟ اس کی قلم اٹھی ہوئی یعنی دوش نہیں ہے, دوش نہیں ہے تو سزا کیوں ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا. قال لا شيء, عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں کوئی فیصلہ, کوئی دوش نہیں ہے. قال فارسلها, علی رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تو آزاد کرنا چاہیے. قال فارسلها, عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آزاد کرو اسے. فجعل يكبر, عمر رضی اللہ عنہ تکبیر کہنے لگے, اللہ اکبر اللہ اکبر, تکبیر کہنے لگے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں غلطی سے بچا لیا. یہ ان کی ہیوملٹی تھی. یہ نہیں کہا علی تم کل کے بچے مجھے سکھاؤ گے, نہیں, جیسے آج بعض لوگ ہوتے ہیں نا, ایسا نہیں کہا, ایکسیپٹ کیا. اور یہی ایٹیٹیوڈ ہمیں سکھایا گیا ہے. بڑے بڑے اسکالرز کا یہی طرز عمل ہوتا ہے, کیونکہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک غلطی سے میں بچ گیا, یہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے. ہاں, تو آپ کے سامنے بات کیا ہے نا, جو ہم بات یہ دیکھ رہے ہیں وہ بات یہ ہے, آگے بات آپ کے سامنے یہ ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز, کہ وہ بڑے عالمز جو ہیں نا, ایسا ہو سکتا ہے, انسان ہے نا, وہ انسان سے مسٹیک ہوتی ہے. 3 پوائنٹس میں نے کہا, بہت سارے ہو سکتے ہیں. فرسٹ پوائنٹ آپ لوگ سب یاد رکھیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کل آپ سے کوئی پوچھے گا کہ اتنے بڑے عالم کی بات ہم کیوں چھوڑے. بڑے عالم ہے, سامنے بھی تو عالم ہے. 2 عالم کے بیچ کی بات ہو رہی ہے. ایک عالم کے سامنے میں نہیں کھڑا ہوں, عالم کے سامنے دوسرے عالم ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کس کے پاس اسٹرانگ پروف ہے, تو بولے ان سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, انسان ہے, انسان سے غلطی ہوتی ہے. نمبر دو ہو سکتا ہے کوئی حدیث تک نہ پہنچی ہو. ہاں بھئی, آج آپ کو پتا ہے جیسے ہمارے پاس آج اللہ نے آج کے کمزور مسلمانوں کے لیے نا بہت فیسلٹیز رکھی ہے. ایسی سافٹ ویئرز ہیں, مکتبہ شاملہ, تھاؤزنڈز آف بکس ہیں. اس میں ایک بک بخاری ہے, ایک بک مسلم ہے. فنگر ٹپس پہ سرچ کرنا ہے, فنگر ٹپس پہ. ایسی کئی ٹرانسلیشن والی ویب سائٹس بھی اویلیبل ہے جہاں آپ سرچ کر سکتے ہیں. ہاں, حدیث سرچ کرنا ہے sunna.com, جا کے سرچ کریے. یہ فیسلٹی آج کے کمزور مسلمان کے لیے اللہ نے اور سہولت رکھی ہے, لیکن وہ زمانے میں ایسی سہولتیں نہیں تھی. وہ لوگ پھر بھی بہت بڑی خدمت کی انہوں نے. اور جب آدمی 100 اچھی چیز بتایا تو کوئی مسٹیک بھی تو ہو سکتی ہے نا. کیوں ہم لوگ اس کے اندر یہ سمجھے مسٹیک ہو گئی تو بہت غلط بات ہو گئی. انہیں تو ہم یہ امید کر رہے ہیں اللہ ان کو اس کا بھی اجر دے گا, ایک اجر دے گا, ان کی کوشش کا اجر دے گا. ہاں, اب یہاں یہ سوال سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر میں لوگ اس میں یہ ہٹدھرمی پہ کیوں اتر آتے ہیں, یہ ایسے سٹبرنس پہ کیوں اتر آتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں. پہلا ریزن یہ ہے کہ ایک تھاٹ ہے لوگوں میں, بہت فیمس بات ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ 4 امام تھے, چاروں نے سنتوں کو آپس میں بانٹ دیا. دیکھیے ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 امام جو سنتوں کو انہوں نے آپس میں بانٹ دیا. ہاں, مطلب کیا؟ آپ دیکھو کہ اگر سنتوں کو چاروں نے آپس میں بانٹ دیا, محمد شمشیر اور عبد الرحمن خان, آپ لوگ دونوں جواب دیجئے کہ اگر چاروں نے ایکول بانٹا, ایکول ایک کو کتنا ملا جی؟ 1/4, یعنی پرسنٹیج میں کتنا پرسنٹ ملا؟ 25% ملا. اور چھوٹا کتنا؟ 75% چھوٹا. تو اگر کوئی کہتا ہے یس شمشیر بھائی آپ کا کیا کہنا ہے, کتنا چھوٹا؟ تو ایک کا ہم جیسے کہ نعوذ باللہ تہمت لگا رہے ہیں. اگر ہم یہ بات بولیں کہ سب نے چاروں نے آپس میں سنتوں کو بانٹ دیا, سب کے پاس چاروں نے بانٹ دیا, تو ایک کو کتنا ملا؟ 25%. چھوٹا کتنا؟ 75%. کیا یہ اچھی بات ہے بولنے کے لیے؟ بری بات ہے. یہ تو الٹا ایسی چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو خیر خانی ہیں یہ اماموں کے جو ایسی بات بولتے ہیں,
हाँ बिल्कुल, तोहमत और इल्जाम है, बहतान है इमामों के ऊपर। ये बात बहुत गंदी बात, गलत बात बोले कि एक इमाम ने जानबूझ के 75% सुन्नत छोड़ दी। अच्छा आप ये बोलो, डेट ऑफ बर्थ देख के भी आपको समझ में आया होगा ऐसी मीटिंग कहाँ हुई है जहां सबने बात दिया कि चलो ये सुन्नत मैं लेता हूँ, ये सुन्नत तुम ले लो, वो सुन्नत तुम ले लो। ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई, और ये बात बिल्कुल गलत बात है। सेकेंड रीजन ये है कि बोलते कुछ लोगों में ये बात है, फेमस है, चारों बरहक है। देखिए चारों ने सही रास्ता बताया, चारों इमामों ने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कहना कि हर एक मसले में सबके सब आलिम सेम सही है, ऐसा भी नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मान लीजिए आप हालत वुजू में, खून निकल के बह गया। लोग पूछते हैं हनफी हो शाफी हो? हनफी हो तो वुजू टूट गया, शाफी हो तो नहीं टूटा। अब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, हकीकत तो एक ही चीज होगी ना, या तो वुजू टूटा या तो नहीं टूटा। ये क्या बात है कि एक का टूट गया दूसरे का नहीं टूटा और दोनों सही है? दोनों कैसे सही हो सकते हैं? जो कहते हैं ना चारों सही है, हर मसले में चारों सही कैसे हो सकते हैं? आप बताओ, आप सोचो जरा इस बारे में। उसी तरह हालत वुजू में है, किसी नामहरम औरत का हाथ टच हो गया, शाफी फिक्र में वुजू टूट गया, हनफी फिक्र में नहीं टूटा। जो शाफी मसलक के मानने वाले हैं, जब वो हज और उम्रा करने जाते हैं ना, तो बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि कभी तवाफ करते करते किसी का हाथ टच हो गया, और एहराम में है तो ओपन भी होता है, किसी औरत का कभी हाथ टच हो गया तो वुजू टूट गया, और वुजू टूट गया तो मस्जिद हरम में वहां कहाँ बाहर जाना पड़ता है वुजू करने के लिए। अब आजकल कुछ नल बने हैं अंदर भी, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी, अभी भी कुछ डिफिकल्टी है। तो लोग क्या सोचते हैं, बोलते हैं कि कई लोग मैंने सुना है केरला वगैरह में, वो कहते हैं कि हम हज करने हनफी नियत पे जा रहे हैं, क्योंकि शाफी नियत पे जाएंगे तो वुजू टूट जाएगा, बहुत डिफिकल्टी होगी। ऐसा नहीं, सही बात ये, या तो टूटा है तो नहीं टूटा, या तो खून निकल के बहा तो या तो टूटा है तो नहीं टूटा। कोई एक आलिम को डबल अजर मिला, कोई को सिंगल अजर मिला, कोई एक सही कोई गलत है। वुजू या तो टूटा है तो नहीं टूटा। अब ये जो दो मिसालें मैंने बताई ना, इसका आंसर सिंपल में बता दूं, या आंसर ये है कि जो हनफी फिक्र के अंदर है कि खून निकल के बह गया तो वुजू टूट जाता है, ये बात सही नहीं है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि सहाबा में बहुत सारी मिसालें हैं कि सहाबा अपने जंग की हालत में खून बह रहा होता और वो लोग अपनी नमाज पढ़ते और ये मानते कि वुजू नहीं टूटा, हाँ नमाज पढ़ते वो। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, और जो हदीस की बुनियाद पर हनफी फिक्र में है वो, उसकी बात ये है, फैक्ट ये है कि वो हदीस सनदन ज़ईफ है। हाँ, तो यहाँ पे इमाम शाफी की प्रूफ स्ट्रॉन्ग है और वहां पर इमाम अबू हनीफा का प्रूफ स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुताहरा जो अहलियाओं में से किसी को बोसा दिया और नमाज पढ़ने गए और वुजू फिर से रिपीट भी नहीं किया। तो मतलब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, इमाम अबू हनीफा की बात सही है। अब हम दलाइल चेक करेंगे तो बात समझ में आएगी। अगर हम ये कह देंगे नहीं हम तो इनके मानने वाले, हमारा तो वुजू टूट गया तुम्हारा नहीं टूटा, तो मैं कहता हूँ ये बात तो नहीं बोलो कम से कम कि चारों बरहक है। मतलब बरहक इस एतबार से है कि सबने सही रास्ता मनहज सिखाया। हर मसले में अगर हम ये समझ रहे हैं कि हर मसले में है, तो आपको पता है कि एक मसलक में सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। एक मसलक में किताबों में है कि सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ लिए तो मुंह में जलते हुए चिंगारे डाले जाएंगे। तो फैक्ट क्या है कि एक मिनट, फैक्ट ये है कि या तो नमाज हुई या तो नहीं हुई, या तो निकाह हुआ या तो नहीं हुआ। निकाह के अंदर ऐसे इख्तलाफात है, तलाक होने में इख्तलाफात है। अब ये सारे इख्तलाफ का हल क्या है? रुद्दू इलल्लाहि व रसूल, कुरान और हदीस की तरफ लौटाओ। ये मानना कि चारों करेक्ट है, ये तो बहुत ही रॉन्ग मिस्टेक है ये हर मसले में। क्योंकि बाज मसाइल में हो सकता है कि ये भी सही है ये भी सही है, बाज में हो सकता है, लेकिन ये चीज जहां पे ये मामला है ना, वहां पे फैक्ट ये है कि नहीं हो सकता। ऐसे बात कई सारे मसाइल हैं जिसमें दोनों सही नहीं हो सकते, चारों सही होना और दूर की बात। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और बात लोगों में बहुत फेमस है, वो है आम आदमी कैसे तहकीक करे। आम आदमी तो मतलब वो क्या कहते हैं, आम आदमी तहकीक नहीं कर सकता। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, अच्छा तौहीद और शिर्क, अगर आम आदमी शिर्क कर रहा है, तो शिर्क कर रहा है तो हम क्या उसे कहेंगे तुम आम आदमी हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम करते रहो शिर्क, ऐसा कहेंगे? या हम उसे कहेंगे तौहीद सीखो, अगर आप शिर्क कर रहे हो मत करो। उसी तरह आम आदमी जब दीन में अगर नई नई चीजें कर रहा है, बिदतों पे अमल कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसे कि तुम आम आदमी हो, तुम बिदत करते रहो? नहीं, हम उसे कहेंगे नहीं ये बिदत है, ये साबित नहीं है, ये सुन्नत नहीं है, ये बिदत है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये तौहीद है, ये शिर्क है।
وہی عام آدمی بزنس کرتا ہے, سروس کرتا ہے, جاب کرتا ہے, مارکیٹ میں کچھ لینے جاتا ہے, ترکاری خریدتا ہے, کوئی بھی چیز, گولڈ خریدتا ہے, برابر تحقیق کرتا ہے. تب ہم یہ نہیں بولتے تم عام آدمی ہو, تمہیں کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. لیکن جہاں پہ مسائل معاملہ ہے تو ہم بولے عام آدمی نا کچھ نہیں سمجھ میں آتا. توحید میں سمجھ میں آتا ہے, سنت و بدعت میں سمجھ میں آتا ہے, دنیاوی ورلڈلی میٹرز میں سمجھ میں آتا ہے. یہاں پہ عام آدمی, یہ کیا بات ہے بھئی؟ اس کو اسٹڈی کرنا اس کے لیے فرض ہے, عام آدمی کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے. اس کو علم حاصل کرنے دو, اس کو علم سے دور مت رکھو, اس کو یہ مت کہو تم عام آدمی تمہیں کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا, تمہیں کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. معلوم ہے ماسس کو جاہل رکھا گیا ہے اسی وجہ سے. یہ ایک بہت بڑی مسٹیک اور بلنڈر ہے. ہاں, ایک اور چیز, کس وجہ سے لوگ قرآن و سنت سے دور رہتے ہیں؟ پہلی وجہ کہ ایک حدیث بات فیمس ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, اختلاف امتی رحمہ, میری امت کا اختلاف رحمت ہے. ہاں, یہ حدیث کے بارے میں محدثین کہتے ہیں, کئی محدثین نے بتایا لا اصل لہو, اس کی سند ہی نہیں ملتی. مطلب سند کے اندر کوئی جھوٹا کذاب راوی ہے, لائر ہے, بولے اس کی تو سند ہی نہیں ملتی. یہ حدیث ہی اس کو بولنا غلط بات ہے, یہ حدیث ہی نہیں. مطلب اس کے اندر اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے والی کوئی چین آف نریشن تو ملے کہ ہم کہیں کہ فیبریکیٹڈ ہے. فیبریکیٹڈ کا ورسٹ لیول ہے یہ, مطلب اس کا کوئی پروف ہی نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ حدیثوں کے بھی خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختلفوا, اختلاف مت کرو. فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا, کہ تم سے پہلے والے اختلاف میں پڑ گئے, ہلاک ہو گئے وہ لوگ. رحمت آئی گا, پہلے والے اختلاف میں پڑ گئے, ہلاک ہو گئے. اگر ایک گھر میں دو بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے, بولے بہت اچھا, گھر میں تو بہت رحمت آ رہی ہے, تو کہیں گے بھائی کیسا خیر کھاؤ, تم ایسی بات کہہ رہے ہو. ہاں, صحیح بات کیا ہے, یہ پرابلم ہے. آپ تو میں ہم سب جانتے ہیں پرابلم ہے. یہ کہاں سے کنسپٹ آ گیا, اختلاف ہے نا بہت اچھا ہے, رحمت ہے, یہ غلط بات ہے یہ. ہاں, اسی طرح سیکنڈ بات یہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں دیکھو زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں, 4 اماموں میں سے ایک کو فالو کرتے ہیں. ہاں, تو بولے ایک کو فالو کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ زیادہ لوگ یہی کرتے ہیں. لیکن آپ بتاؤ کہ زیادہ لوگ کب سے دلیل ہے؟ قرآن میں تو یہ بتایا گیا ہے ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, اکثر انسان ناشکرے ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, اکثر انسان نہیں جانتے. قرآن میں آتا ہے سورہ مائدہ سورہ آیت نمبر 100 میں کہ صحیح اور غلط ایک جیسا نہیں ہے. ولو اعجبک کثرت الخبیث, چاہے غلط چیز کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے, او ہو اتنی زیادہ غلط چیز ہے, تو بھی غلط ہے, وہ غلط صحیح نہیں بن جائے گا زیادہ ہونے سے. اور آپ بتاؤ, دنیا میں ایک ٹائم تھا, اکثر لوگ بولتے تھے زمین چپٹی ہے, فلیٹ ہے, ارتھ از فلیٹ, دی ارتھ از فلیٹ. معلوم ہے آپ کو, ایک ٹائم تھا لوگ بولتے تھے, کبھی بھی ارتھ فلیٹ نہیں تھا. تو زیادہ لوگ بولنے سے تھوڑی کوئی بات صحیح ہو جاتی. ہمارے لیے پروف کیا ہے قرآن حدیث میں. ایک اور چیز ہے, کچھ لوگ بولتے ہیں فادرز فور فادرز, ہم ان کے راستے پہ چلیں گے. تو آپ بتاؤ, یہ سیم ورڈز مکہ کے مشرکوں نے جب بولے تھے, قرآن میں دیا ہوا ہے سورہ مائدہ سورہ آیت نمبر 104. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مکہ کے مشرک بولتے تھے, کیا بولتے تھے, حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا, ہمارے لیے جو ہم اپنے باپ دادا کو کرتے پائے نا وہی کافی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا, ان کے باپ دادا کے پاس کوئی چیز کی نالج نہیں تھی تو بھی تم ان کے راستے پہ چلو گے. وہم لا یہتدون, ہدایت پہ نہیں تھے وہ لوگ تو بھی. کتنے تعجب کی بات ہے. اوکے نیکسٹ, ابھی اگلی بات کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 4 میں سے ایک چیز, 4 میں سے ایک. اب ان کے سامنے میں چند فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے صرف 4 نہیں تھے امام. ہاں, 4 امام نہیں تھے. جیسے امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کا ذکر ہے, تو آپ کے سامنے یہ جو ڈارک بلو میں جو آ رہے ہیں نا, امام اوزائی بھی ہیں, 85 ہجری میں پیدا ہوئے تھے, بہت بڑے اسکالر تھے. امام لیث بھی ہے, 93 ہجری میں پیدا ہوئے تھے, ہاں, سیم ایئر ایز امام مالک. امام لیث کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, امام شافعی امام لیث کے شاگردوں کے پاس پڑھے تھے اور امام مالک کے پاس بھی پڑھے تھے. اور امام شافعی ایک بات بولتے ہیں جو آپ اور میں نہیں بول سکتے, لیکن امام شافعی پڑھے تھے دونوں کے پاس, تو وہ بول رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ امام لیث جو ہے امام مالک سے بڑے عالم تھے, بڑے اسکالر تھے. امام الثوری, امام داؤد, امام ابن جریر, محمد ابن جریر الطبری, ایسے کئی سارے اسکالرز گزرے, کئی سارے بڑے بڑے, ناٹ لیس دین آپ کو 12 علماء ملیں گے اسی زمانے میں, بڑے بڑے امام. لیکن کیا تھا, کسی عالم کے اسٹوڈنٹس بہت ایکٹیو تھے, کسی عالم نے بہت کتاب لکھی, کسی عالم کے فقہ کو حکومت نے قبول کیا, ایسے کئی وجوہات کی وجہ سے 4 زیادہ پاپولر ہو گئے. اب 4 پاپولر ہو گئے تو یہ کہنا 4 میں سے ایک کو فالو ہی کرنا ہے, یہ ہم کہتے ہیں 4 میں سے ایک کو فالو کرنا اگر ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا بات, تو صرف 4 نہیں تھے, 12 کے قریب تھے. اور کسی نے بھی یہ نہیں سکھایا چاروں اماموں میں سے, میں یہ پول سکپ کر رہا ہوں ٹائم کیونکہ کم ہو گیا, تو کسی عالم نے ایسا نہیں سکھایا کہ میری بات ہی فالو کرو. ہاں, اس بارے میں یہ سوال جو آیا نا آپ کی اسکرین پر, ان میں سے کسی نے یہ نہیں سکھایا.
تو پیچھے آتے تھوڑا, میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا 4 میں سے ایک کو فالو کرنا ہے, تو قرآن و حدیث میں ایسا کہیں نہیں ہے, 4 کا فگر نہیں ہے. لوگ کیا بولتے ہیں نا, یہاں تک بولتے ہیں اگر 4 اماموں میں سے ایک کو فالو نہیں کیے تو تمہارا امام شیطان ہے, تمہارا امام شیطان ہے. کہاں سے آئی بات؟ قرآن حدیث میں ہے. یہ تو خود نئی چیز ہے, نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں. فہو رد, اٹ از ریجیکٹڈ. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ 4 میں سے ایک کو فالو ہی کرنا ہے. ہاں مطلب 4 ہی نہیں, ساب علماء ہمارے ہیں, چاروں ہمارے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں نا, پہلے آپس میں اماموں کو بانٹ دیتے ہیں, ہاں پھر بعد میں حدیثیں بھی بانٹتے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کسی کے سامنے حدیث آئی, وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو شافیوں کی حدیث ہے, یہ حنفیوں کی حدیث ہے. ارے نبی ہمارے ہیں, سب حدیثیں ہماری ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کوئی بھی سنت ہے, بچے کی مثال یاد ہے نا آپ کو, ہاں. تو فقہ کے کسی مسئلے میں ہم کسی بھی عالم کی بات کو لے سکتے ہیں, صرف 4 نہیں, بڑے جتنے علماء گزرے سارے علماء کے سے کسی کی بات لے سکتے ہیں. ہاں پروف ہونا چاہیے, ان کے پاس پروف ہونا چاہیے. اوکے, تو یہ بات دیکھنے کے بعد اب لاسٹ سیکشن ہمارا آج کا وہ یہ ہے کہ چاروں ائمہ نے کیا سکھایا, ذرا ان کے بھی سٹیٹمنٹس لے لیتے ہیں. کیا ہوتا ہے نا, جو لوگ اماموں کی طرف ریفر کرتے ہیں, اماموں کی بات کرتے ہیں, تو اماموں کے مسائل جب لیتے ہیں تو اماموں کے بنائے ہوئے اصول بھی تو لینا چاہیے. مسائل جب لیتے ہیں تو اماموں کے اصول بھی لینا چاہیے. تو یہاں پہ یہ دیکھیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, ان کے الفاظ ہیں لا یحل لاحد, کسی کے لیے حلال نہیں ہے ان یاخذ بقولنا, کہ ہماری بات کو لے لے, ما لم یعلم من این اخذناہ, جب تک وہ یہ نہ جانے کہ میں نے کہاں سے لیا, ہم نے کہاں سے لیا. مطلب ہماری بات مت لینا تب تک جب تک یہ نہ جان لو کہ ہم نے کہاں سے لیا ہے. مطلب ان کا پروف کیا ہے, جب تک یہ نہ جانو تو انہوں نے کہا تب تک میری بات مت لینا, حلال ہی نہیں ہے تمہارے لیے میری بات لینا جب تک تم میرے پروف کو نہ جانو. مطلب وہ کنیکٹ کر رہے ہیں کیا چیز سے, قرآن و سنت سے. بہت بڑے حنفی عالم ہیں امام ابن عابدین, انہوں نے اپنی کتاب حاشیہ بحر الرائق کے اندر فٹ نوٹس میں والیوم 6 پیج نمبر 293 میں امام ابو حنیفہ کا ایک قول صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا. آگے ہم دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے, اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ وخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فترکوا قولی, اگر میں اللہ کے کلام کے خلاف بات بول دوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف بات بول دوں, میری بات کو چھوڑ دینا, میری بات چھوڑ دینا. تم کتنا کلیئر کٹ, یہ نہیں کہا کہ میری بات نہیں چھوڑنا, کچھ بھی کرنا میری بات نہیں چھوڑنا, ایسا نہیں کہا. امام مالک نے کیا کہا, انما انا بشر, میں تو انسان ہوں, اختی و اصیب, میں مجھ سے مسٹیک بھی ہوتی, میں صحیح بھی ہوتا ہوں. فانظروا فی رأی, میں جو کوئی بات بولوں تو میری رائے کی طرف دیکھنا. فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوہ, جو بھی قرآن و سنت کے مطابق ملے لے لینا. وکل ما لم یوافق الکتاب والسنہ فترکوہ, اور جو بھی قرآن و سنت کے خلاف ملے چھوڑ دینا. امام مالک نے یہ سکھایا. امام مالک کا یہ بھی الفاظ ہیں, ان کے یہ بھی الفاظ ہیں, لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے, الا یؤخذ من قولہ ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی کچھ باتیں, سب کی کچھ باتیں لی جائے گی, کچھ باتیں چھوڑ دی جائے گی سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نا, ہم لوگ چھوڑ سکتے ہیں, یہ بات نہیں مانتا ایسا نہیں کہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نا, مانتے ہیں ہم, کیونکہ اللہ نے کہا کہ نبی کو میں انک بأعیننا, جو بات ہے اللہ نے اس کی حفاظت کی. اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو لوگ ہیں, کچھ باتیں لیں گے, کچھ باتیں چھوڑیں گے, سب کا یہی معاملہ ہے. اور اس بارے میں امام شافعی کا قول بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا اجماع المسلمون, مسلمانوں کا تو اجماع ہے, کنسنسس ہے, اتفاق ہے اس بات پر, علی ان من استبان له سنت من رسول اللہ, جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہنچ جائے. لوگ کیا بولتے ہیں, اجماع ہے 4 پر. اجماع اس پہ نہیں ہے, اجماع اس پر ہے. کیا اجماع ہے؟ اس میں صرف دعویٰ ہے, اجماع نہیں ہے. اجماع اس بات پر ہے, کیا چیز پہ اجماع ہے, کہ ان من استبان له سنت من رسول اللہ. امام شافعی کہہ رہے ہیں جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہنچ جائے, لم یحل له ان یدعها لقول احد, تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی بات کے لیے نبی کی فرمان کو چھوڑ دے. مطلب تمہارے پاس نبی کا فرمان پہنچ گیا نا, اب تم بولے نہیں میں دیکھتا ہوں میرے عالم کی بات, تمہارے پاس نبی کا فرمان آیا نا, اب تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے. اور یہ بات پہ اجماع ہے, اتفاق ہے, کنسنسس ہے, پورے مسلمان اس بات میں جمع ہے. کس چیز میں جمع ہے, کہ کسی اور کی بات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ بات پہ اجماع ہے. اور امام احمد رحمہ اللہ نے کہا لا تقلدنی, میری تقلید مت کرنا, مطلب آنکھیں ہٹ دھرمی کے ساتھ میری بات مت ماننا بغیر پروف کے, دلائل کے. ولا تقلد مالک, نہ مالک کی کرنا, ولا شافعی, نہ شافعی کی کرنا, ولا الاوزاعی, دیکھو دوسرے ناموں عالموں کا نام آ رہا ہے, ولا الاوزاعی, نہ اوزاعی کی کرنا, ولا ثوری, ثوری کی بھی مت کرنا, وخذ من حیث اخذوا, وہاں سے لینا جہاں سے ہم سب نے لیا ہے. میرے بھائی میری بہنیں,
टॉपिक तो हो गया कंप्लीट। एक मिसाल देके खत्म करूंगा, 2 मिनट बचे हैं, इंशाल्लाह टाइम पे फिनिश करेंगे। आपको पता है कि सहाबा इकराम का अल्लाह ने इम्तिहान लिया। किबला जो था मस्जिद अक्सा था, 16-17 महीने तक उन्होंने मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ी, और फिर क्या हुआ, किबला तब्दील हो गया, किबला चेंज हो गया। क्या था ये? इम्तिहान था, टेस्ट था, इम्तिहान था। 3 लोगों को मैं मौका दे रहा हूँ, मैं उनसे इंटरेक्ट करूंगा। टॉप पे सिस्टर मलिहा, सिस्टर नुसरत, सिस्टर आसिया, हाँ 3 लोगों को मौका दिया। जेंट्स में अब्दुल रहमान जी। सवाल मेरा ये है, म्यूट को, सवाल ये है, क्या ऐसा इम्तिहान हमारा है? ऐसा इम्तिहान क्या हमारा होगा जैसा वो लोगों का हुआ? किबला चेंज हो गया, अब हम लोग नमाज किस तरफ पढ़ रहे हैं? मस्जिद हरम की तरफ ना। ऐसा इम्तिहान हमारा होने वाला है, फिर से किबला चेंज होने वाला है? हाँ नहीं होगा। ऐसा इम्तिहान हमारा नहीं है कि किबला कल चेंज हो जाएगा, खबर आई किबला चेंज, ऐसा होने वाला है? नहीं होने वाला। उनका हुआ और वो पास हुए। हमारा क्या इम्तिहान होता है मालूम है? एक शख्स एक बात को फॉलो करता है, सही मानकर फॉलो कर रहा है, फिर वन फाइन डे उसे मालूम पड़ता है अरे मैं ये फॉलो कर रहा था लेकिन ये सही नहीं है, ये सही है। अब इम्तिहान ये है, अल्लाह ताला ने सहाबा का इम्तिहान लिया कि किबला चेंज हुआ, वो लोग फॉलो करें नहीं करें, और उन्होंने फर्मा बरदारी बताई, पूरी फर्मा बरदारी। हमारा इम्तिहान ये है कि अब मुझे मालूम पड़ा अरे मैं ये कर रहा था ना, मैं यहाँ हाथ बांध रहा था नमाज में, मैं ऐसे नमाज पढ़ रहा था, फिर कल मालूम पड़ा अरे ये साबित ही नहीं है। फला स्कॉलर बोल रहे हैं, उनके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, क्लियर कट रॉन्ग है, मिस्टेक है, क्लियर कट उनके पास प्रूफ है। मैं मान रहा था वुजू टूट जाता है, लेकिन मालूम पड़ा नहीं टूटता है, या टूटता है नहीं टूटा, मतलब मालूम पड़ा, जो प्रूफ मालूम पड़ा, दलाइल के साथ, प्रूफ के साथ। अब मेरा इम्तिहान ये है ना कि मैं वो प्रूफ आने के बाद वो चीज कबूल करता हूँ कि नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फाइनल जज बनाता हूँ नहीं बनाता। इख्तियार मेरे पास है, मैं ये समझता हूँ कि आई हैव चॉइस टू एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट, या ये मानता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना। ये इम्तिहान हमारा है, आपका है, मेरा है, हम सबका है। मैं आप सबको दावत देता हूँ, बी अ सीकर ऑफ द ट्रुथ, सच्चाई को फॉलो करिए प्लीज। सारे उलमा को रिस्पेक्ट करें, हटदर्मी के साथ किसी आलिम को मत फॉलो करें। वक्ती तौर पर किसी आलिम की बात आपको लग रही है स्ट्रॉन्ग है, आप वो बात एक्सेप्ट करें, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? जहाँ लोग अटक जाते हैं, किसी आलिम की बात को स्टबर्ननेस के साथ फॉलो करते हैं, कुरान और हदीस की बात सामने आती है और फिर भी अपने आलिम की बात को नहीं छोड़ते हैं। क्या होता है ना, कई सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें उनसे छूट जाती है, हाँ कई सारी। और अगर ये टॉपिक इतना समझाने के बाद भी आपको नहीं समझ में आया ना, तो आपको पता है लास्ट में क्या होने वाला है? क्या होता है मालूम है? ऐसे मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसी के सामने हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बताने वाले स्कॉलर्स हैं, उनका फतवा है, प्रूफ है, सामने है, क्लियर है, देखा, लेकिन बोलते नहीं हम लोग इस बात को नहीं मानते क्योंकि हमारे इमाम ने नहीं कहा। कैसे? कितनी हदीसें छूट जाती हैं, कितनी सुन्नतें छूट जाती हैं, क्या होगा उसका मामला? तो ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। मैं आप सबके सामने दावत रखता हूँ। अच्छा, आप सब स्टूडेंट्स में जो सारे स्टूडेंट्स पीछे हैं अभी तक, जाओ iicu.com पर अपना अकाउंट क्रिएट करो, एग्जाम्स देना शुरू करो, लास्ट मिनट के लिए मत छोड़ो। हर टॉपिक जब पढ़ो इमीडिएटली जाकर एग्जाम दे दिया करो। इंशाल्लाह रिवीजन का लेक्चर आपके पास पहुंचेगा अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह। और आप लोग स्टडी करें, इल्म हासिल करें, सच को एक्सेप्ट करने का अपने लिए मिजाज बनाए अपने अंदर। आखिर में मैं एक दुआ के साथ इस लेक्चर को खत्म करता हूँ। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कम वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ। अल्लाह मुझे हक को देखकर पहचानने की तौफीक दे, उस पर चलने की फिर तौफीक दे। व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। और बातिल को, फॉल्सहुड को, गलत को देखकर पहचान कर उससे बचने की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गफलत में मत पढ़ना, शैतान आपको धोखे में डाले, नहीं बाद में सुन लेना वीडियो, डोंट नो। आपको क्लासरूम में अटेंड होना है, क्लास अटेंड करना है। बात की बात अच्छी बात है, इल्म हासिल करने के लिए जिंदगी है, लेकिन आपने कोर्स ज्वाइन किया, क्लास में अटेंड करिए इंशाल्लाह। जिंदगी में से टाइम निकालिए, अटेंडेंस है ना, डिसिप्लिन रखिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते। जज़ाकल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।